एनाटॉमी बेसिकली, ठीक है। सो इसमें जो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता देती हूँ। आई जस्ट बी टेलिंग यू द नॉर्मल रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ चेस्ट एक्सरे, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, नॉर्मल बोन्स, सीटी ब्रेन, चेस्ट सीटी, normal gastrointestinal tract, renal tract, and abdomen and pelvis. Just the basics. I have a few common pathologies. If we have time, we'll touch upon them. Otherwise, this will just include all the rest of the things that we can see. Okay. So we come to the first presentation now. Achha, so the first one that we'll do is normal chest X-ray. सबको नजर आ रहा है? Everyone can see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम स्क्रीन वाइड कर दें, फुल स्क्रीन कर दें। अच्छा, ठीक है। अब ठीक है? जी मैम, ओके। अच्छा, so wherever you want to ask questions, you can ask questions, you can interrupt, right? So basically the basic, we'll be discussing the basic technique. Normally आपको पता है chest PA view किया जाता है क्योंकि उसमें हार्ट पे नॉर्मल नजर आता है, उसका साइज एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, right? So this is a normal chest X-ray and this is how an AP view is done. Chest PA जो है वो supine position, erect position में किया जाता है और वो नॉर्मल हर केसेस में PA view किया जाता है ताकि हार्ट साइज पे एक्यूरेटली कमेंट हो। AP व्यू सिर्फ तब किया जाता है जब पेशेंट उठ ना सकता हो, लेटा हो और या बीमार हो या फिर बच्चों में, न्यूनेट्स में, राइट? So what are the difference between supine and PA view? These are the basic differences जो आपको नजर आ सकते हैं, but I think you don't require it in your exam, but this is what are the differences, but आपको पता होना चाहिए AP और PA में क्या है। How do you differentiate? This is a PA view that you can see over here. This is an AP view, and as you can see in the PA view, heart size is normal. AP में बहुत magnify हो जाता है, mediastinum भी magnified होता है और plus scapula भी override करते हैं lungs को, so the image is not very clear, जबकि इसमें image is very clear, so that's why we always go for a PA view, ठीक है? Then the second important view that we do is a lateral view, and this is how it is done, and this is the normal lateral view that you can see. This is the heart, this is the posterior part of the posterior mediastinum, this is the anterior, and normally this lucency, which is termed as the retrosternal lucency or blackness, should be equal to the retrocardiac lucency. We'll discuss the details later in the subsequent films. And again, centering is very important. Centering से क्या मुराद है कि central जो vertebral bodies हैं उसके equidistant clavicles होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो फिर normal anatomy सारी distorted होगी और आप comment नहीं कर सकते इस पे, right? So this is how you can detect whether it is central or not. Now coming to the normal anatomy, this is very important. आपके लिए जब आप एग्जाम में जाते हैं आपसे पूछा जाता है upper lobe और middle lobe, lower lobe कहाँ आते हैं? So this is the upper lobe. This is how it projects over here. All the things that you can see over here in the lung, this will be in the upper lobe. This is the projection of the middle lobe, and this is the projection of the lower lobe. Similarly on the left side, this is the projection. आपको पता है left side पे सिर्फ 2 lobes होते हैं, right पे you have 3 lobes, left पे you just have the upper lobe and the middle lobe. So the upper lobe is projecting over here and the lower lobe you can see is projecting over here. लेकिन apex इसका overlap करता है और यहाँ पर upper और lower lobes दोनों project करेंगे, right? Now coming to the anatomy, this structure that you can see over here, ये आपको नजर आ रहा है bony structure? This is the manubrium. Can you hear me? और नजर आ रहा है आपको सबको clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again, then this is this structure that you can see over here. These are the parts of the mediastinum जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि mediastinum borders right किससे बनता है, cardiac border किससे बनता है. So this is how you can see, and this is how it is formed. This is the margin of the manubrium. Over here, the right margin of the heart is formed by the superior vena cava superiorly. Then over here, the margin is formed by the right atrium. And the inferior border over here, this portion, this is the inferior vena cava. Is it clear? Then again, the heart border, the next portions that you can see on the left side, the heart border is formed by the aortic arch. In between, you have the aortopulmonary window. Then this is the main pulmonary artery, this bulge formed over here. And from here, then you have the left atrium, small portion, and the rest of all of the left cardiac border is formed by the left ventricle. ठीक है? और जो projections fissures की होती हैं, ये क्या नजर आपको? What is this fissure? Horizontal fissure.
जो upper और middle lobe को separate करते हैं. This is the oblique fissure on the right side, and this is the oblique fissure on the left side. बाकी structures जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे outside the structures हैं. Like these are the ribs, and the anterior portion of the ribs is this. ठीक है? First rib anterior, second anterior, third anterior, fourth anterior, and these are the posterior margins of the same ribs. First rib, second rib, third rib, fourth rib, and posterior margins are higher up, ऊपर होते हैं, और inferior margins जो है lower down होते हैं, right? Then over here, this is the diaphragm, this is the subdiaphragmatic area, this is again the margin of the stomach, and this bubble, air bubble that you see here is the stomach bubble. This is the diaphragm outline, as you can see, and this angle that you see over here is the costophrenic angle between the costal cartilages or the ribs and the diaphragm. So it is called the costophrenic angle. There is another angle formed over here. This angle that you see over here, this is the cardiophrenic angle between the heart and the diaphragm. So this is the costophrenic angle, and this is the cardiophrenic angle. And you have two cardiophrenic angles, and again you have two costophrenic angles, right costophrenic angle, left costophrenic angle, left cardiophrenic angle, and right cardiophrenic angle. If you have any question or any query, you can please interrupt and ask me in between, okay? Otherwise, we will continue with the session. Okay, now coming to the anatomy of the airway. Again, this is important for MCQs and the point of view that the trachea over here, it comes centrally. It divides at the level of the T4 level, right? And then it divides into two main bronchi, right main bronchus and the left main bronchus, right? The right main bronchus is more vertically oriented, as you can see, more straight, wider, and it goes down. And over here, this is the left main bronchus, right? And this is more angulated and horizontally oriented. And the importance or clinical aspect of this is that when you have aspiration or a foreign body aspiration, because of the straight route of the right bronchus, the body or the foreign body tends to more go into the right bronchus preferentially as compared to the left main bronchus. So this is the trachea. This bulge that you see over here is the aortic knuckle. This is the right main bronchus, and this is the left main bronchus. And this angle that you see over here is the carina. This is the division angle of the division, and normally this angle varies the angle range of this is between 60 to 75 degrees. But if it is more than 75 degrees, then that is seen in usually left atrial enlargement, in which the left main bronchus is elevated and this carinal angle increases. So this is again an MCQ that is given, and radiologically you can evaluate, and these are the things that you can memorize by looking at the images. Coming to the hyla, these are the two hyla, the right hilum and the left hilum. Important point regarding the hilar anatomy is that it should have an outer concave margin. This is normal, right? They should be equal in density, but normally the left hilum is higher than the right hilum because the left pulmonary artery is eparterial, it crosses over the bronchus, and this is hyparterial, it crosses anterior, and therefore the left hilum is higher in relation to the right hilum. Is it clear? If there is any increased in density, loss of this concavity with formation of convexity or lobulation, then that is abnormal, right? This is again, this is a relatively prominent hilum, and what are the normal hilar shadows formed by? Again, an MCQ question. It is formed by the pulmonary artery, pulmonary veins, and the hilar lymph nodes, right? So any enlargement of these three structures will lead to enlargement or prominent hilar shadow, right? Now, blunting of costophrenic angle is because of pleural fluid or fibrosis, which I'll show you a film if we have time. Now, how do we divide the lung zones? This is the upper zone above the second rib. Between the second to fourth rib, the anterior margins, you have the middle lung zone, and below the anterior margin of sixth rib, you have the lower lung zone. So you divide the lung into three zones, right? On the basis of imaging on the at the level of the rib levels, right? But again, just to know anatomy, that how do the lobes overshadow? This is how the upper lobe will be seen anteriorly. This is the part that will be shown by the right upper lobe.
Then this is the part that will be seen in the right middle lobe. The pathologies of the right middle lobe will project in this part of the lung, lower lobe in this part of the lung. Then this is how the horizontal fissure is seen. This is how the oblique fissures are seen. The left one is left behind to remember it. That is, it falls short of the right oblique fissure, right? Okay, then this is another accessory fissure, which is again an MCQ asked, and this is an azygous fissure. It is a normal variant, an anatomical variant, an accessory fissure, and it divides the upper lobe into an accessory lobe, which is called the azygous lobe. And the azygous vein lies in the floor or the lower inferior end of this azygous fissure. So you need to just remember this, and by image, probably you'll remember it, right? Then again, the right hemidiaphragm is slightly higher anteriorly because of the liver, and the left is lower down and is obscured because the heart lies right on top of it. But again, posteriorly, the right hemidiaphragm goes a bit posteriorly, while the left remains at the same level. So again, this is how you see it on the lateral view. Now coming to the anatomy of the heart, right? We've seen about the lung and the hila. Now coming up to the anatomy of the heart. What are the things that you see in the heart? As we already discussed, superior vena cava forms the right heart border. Inferiorly, it is formed by the right atrium. Then the inferior heart border. This is the right cardiac border. The inferior heart border is formed partially by the right atrium. Then it continues by the right ventricle, and then further on it is continued by a small portion is continued by the left ventricle. The left cardiac border, then how is it formed? The left cardiac border is formed primarily by the left ventricle. A small portion is formed by the left atrium, atrial appendage, in fact, which is projecting anteriorly. Then you have the main pulmonary artery. Then this is the aorta, right? And in between this area that you have is the aortopulmonary window. And this area is important because enlarged lymph nodes usually develop in this area, and they cause a focal bulge in this area, which is abnormal, right? So this is a visual anatomy, and you need to know the cardiac borders, which again come in the MCQs. Now coming to the cardiac borders that you see, or the mediastinal borders that you see on the lateral view. So the anterior border of the heart is formed primarily by the right ventricle and superiorly by the pulmonary artery. And the mediastinal border, the anterior part, is formed by the ascending aorta and then by the arch of the aorta, right? The inferior border anteriorly is formed by the right ventricle, and posteriorly it is completed by the left ventricle. And the small part of it, the posterior border, is formed by the inferior vena cava, then but majority is formed by the left ventricle and superiorly by the left atrium. So the heart borders, again, which come in MCQs and are asked, are very important, and by knowing a visual anatomy of the radiological anatomy, you can answer this question and MCQ very well. Okay, again, the same thing, we've already discussed it. We can see over here that this is the pulmonary artery, main pulmonary artery, which is dividing into the right and left branch, superior vena cava, atrium, and this is the tricuspid valve between the right atrium and the left ventricle. This is the left ventricle, and this portion that you see over here projecting, this is the right ventricle and this is the left ventricle. So again, this is the same anatomy, and you need to know this once you want to answer the questions in the MCQ. Again, same thing, but again, as you can see over here, the concavity of the hila that we discussed is because of the branching pattern of the pulmonary arteries. The upper pulmonary artery, upper lobe artery, divides and goes superiorly, and the lower artery divides at a concave angle. So that's why the outer margin is concave. And similarly over here, again, from the right ventricle, you have the main pulmonary artery divides into the left, and the left one again is relatively higher, but again goes up and down, and that's why you have an outer concave margin, right? But again, important point is for MCQs, both left hilum is higher than the right one, and they have an outer concave margin, and their density and size is equal. There is no lobulation or rounded or convex outline. If it is there, that is abnormal, right? Again, aortic knuckle, which continues inferiorly as the descending aorta, we've already discussed it, and I've already told you the importance of the aortopulmonary window.
which is a very important area. And as you can see over here, the mediastinal margins which were formed were the ascending aorta. Then this continues as the arch of aorta, and then it continues as the descending aorta, right? And over here you have the pulmonary artery dividing into the left pulmonary artery and the descending branch. And in between this area is the aortopulmonary window, which is very significant. It is normally concave outwards. Concave means like this. But if it becomes convex outwards, bulging, then that is abnormal and usually because of enlarged lymph nodes. Is there any question up till now, or it's very clear? No, ma'am. Clear. Okay. If you have any question or query, you can please ask or interrupt or in between, okay? Now, the first thing that we have discussed on the chest X-ray, normal radiological anatomy, was the lungs. Now, the second part that we're going to discuss, the second most important thing over here is the heart. And in the heart, usually that we comment on is basically the heart size, right? We can comment on the shape as well, but now as we have echocardiography, so you go for that and you see what anomaly is seen. But basically you have to comment on the heart size. And how do you comment on the heart size, or how do you calculate the heart size? This is termed as the CT ratio or the cardiothoracic ratio. How do we calculate it, right? The cardiac ratio, first of all, we'll take the cardiac ratio. You draw a line in the midline, right? At the center of the vertebral bodies, right? And from here, the maximum bulge on the right side, you measure this distance, maximum bulge on the right cardiac border. Then the maximum bulge on the left cardiac border, you measure it from the midline and you add both of these up, right? A plus B. So this is the cardiac diameter. And how do you calculate the thoracic diameter? The maximum diameter width of the thorax, wherever it is maximum, you measure it, but from the inner margin of the rib, not the outer margin of the rib. As you can see over here, again, another important MCQ question. This is from the inner border of this rib to the inner border of the rib at the maximum transverse depth. So this is the maximum thoracic diameter. And by dividing this A plus B over C, you get the normal CT ratio or cardiothoracic ratio. And does anyone know what is the normal CT ratio? Anyone? 1/3. 1/3, it is around 50%. Okay? 1:2. Yes, 1:2. It's half. It should be 50% or less than that, not more than that. If it is more than 50%, then you label it as cardiomegaly. But again, as I told you, this measurement can be done on an AP view or a PA view. Anyone? PA view. PA view. So that's why I require a PA view, because an AP view, if the patient is fat, the magnification will be more. So you will not have an accurate dimension of the cardiothoracic ratio. So you require a PA view to calculate it, right? Okay, so these are then coming on we've discussed the lungs, we've discussed the heart, we've discussed the lung zones, we'll discuss the lung lobes, right? Now we're coming to the overlying structures that are the bony structures and the soft tissues that we see over here, right? So what are the bony structures and soft tissues that we see? You see the vertebral bodies, which are posteriorly, but again, they project in the same view. So you see overshadowing that. You see the manubrium and the sternum, which is outlined like this. And then you see the ribs. And as you can see by this yellow outline over here, this is the posterior end of the rib, which is higher up and posterior. And then it goes down and the anterior end is more anterior and lower down in position, right? So this is the outline. So you can see the manubrium, you can see the sternum, you can see the ribs. Then again, you can see the clavicles, which are projecting over here, and you can see the scapula as well. We'll discuss it in the next films, the clarity of the scapula. And on the lateral, what are the things that you can see? Again, the sternum anteriorly and the vertebral bodies posteriorly. This is the vertebral body. These are the pedicles. And from here, you can see the ribs are originating from the forming costovertebral joints, and then the ribs you can see passing laterally over here. On the soft tissues, what are the soft tissues that you can see? You can see the overshadowing neck soft tissues of the breast in case of female patient, and again skin folds and muscles are overshadowing over here. So these are the things that you look over here.
Right? Again, the same things we've already discussed, the bronchus and horizontal fissure. I'll not go into the details. We've already discussed this. If anyone has any query or questions, so most welcome, we can again discuss the same thing. Otherwise, we'll move on to the next thing. Now, again, coming to the lateral view, what are the things that you see on the lateral view, right? Excuse me, please, there's one request. Sorry? Last slide दोबारा दिखा दें. जी, please. From Dr. Javeria. जी. उन्होंने chat box में लिखा है. अच्छा, ये वाली स्लाइड डॉक्टर साहब? उन्होंने पता नहीं कहा लास्ट स्लाइड हो, कौन सी थी मेरी भी अभी नजर पड़ी. मैम जवेरिया वो खुद बता बॉर्डर्स सकती है. वाली, मैम कार्डिक बॉर्डर्स वाली, कार्डिक जी। बॉर्डर्स वाली. जी जी आप प्लीज मैं इंटरप्ट करके प्लीज पूछ लें, ठीक है, जो आपने पूछना है. ये कार्डिक बॉर्डर्स वाली है, ठीक है. यस दीज आर इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग एमसीक्यू जो आपको आता है ना, तो उसमें बॉर्डर्स, जोन्स, लोब्स कहाँ ओवरशैडो करते हैं, इट्स थैंक यू. इम्पोर्टेंट. Okay. Now, so this is just a repetition of the same thing. Again, lateral view, what are the things that you see? Again, the heart is over there, right? And these two structures, I'll show you. Again, we discussed that what is the right and left hemidiaphragm. Again, the higher one over here that you see is the right one. The lower one over C anteriorly is the left one. So you can identify the right and left on the lateral view. So this is annotation so that you can identify what it is. And again, these structures that you see over here, these are the overshadowing scapula. This structure that you see over here is the trachea, and this is the hyla or the vessels which are overshadowing. So again, an important thing that you have to see and comment is the retrosternal air space and the retrocardiac air space. The density of these air spaces or the lucency should be equal. This, if there is any increased opacity or whiteness in this area or in this area, this means that this is abnormal. So the blackness over here needs to be maintained and equal in this area and in this area, which is the retrosternal and the retrocardiac area. Is it clear? So again, this is an important question which is asked and you can tell about it. And again, we've already discussed the, as you know, the borders. So anteriorly, we have the right ventricle and posteriorly you have the left atrium superiorly and the left ventricle inferiorly, right? So again, the important lateral landmarks, this line, thin line that you see over here is the oblique fissure. And this thin line that you see over here passing anteriorly over here till this area, this is the horizontal fissure. And in between these two structures, this is the middle lobe, right? And superior to this over here, this is the upper lobe. And this whole posterior to the oblique fissure, this is the lower lobe on the lateral view, how it is projecting. Is it clear? Then these folds that you see over here is the axillary fold. This shadow that you see over here is of the aortic arch, and this is then the tracheal lucency. Lewis angle, again, what is this angle? This is usually at T4 level, at the level of carina, it is Ma'am, formed. what is TE stripe? Sorry? Ma'am, in previous slides, there is TE stripe. Tracheoesophageal stripe. TE stripe is tracheoesophageal stripe. Normally, TE stripe, it is seen on both PA view and lateral view. It is the right or the posterior boundary between the trachea and esophagus, and it should be very thin, just like a line. Can you see this line? Can you see this line? Yes, ma'am. So it should be like a line like this. In case of a tracheal tumor, esophageal tumor, or a lymph node enlargement, this tracheal stripe becomes enlarged and thickened. So this is a significant point radiologically on both the lateral and AP view. And if it is thickened, this means there is some pathology either in the esophagus, mediastinum, or the trachea. So we need to evaluate it. So we mention it in radiology, right? Thank you, ma'am. Okay. Welcome. Okay, so this is again, you know the division that we divide the mediastinum into superior and inferior mediastinum. Inferior mediastinum is again divided into anterior, middle, and posterior mediastinum. So this is the superior mediastinum above the level of carina, and this is the inferior mediastinum below the level of carina, which is further divided into the mediastinum anterior to the heart, which is the anterior mediastinum, the middle mediastinum, which primarily contains the heart, and the posterior mediastinum, which is posterior to the heart.
right? Again, the dividing lines are important to evaluate. I already told you these are the scapular margins, and this is the arm because we do it like this, and obviously the arm shadow then overshadows over this area. Okay, so this is then again the lateral view. As you can see, this is the pulmonary arch. This is the aortic arch. Over here, inferior to this dividing, this is the pulmonary arch on the lateral view, and in between this lucent area is again the aortopulmonary window. And if this lucency is lost, again, we evaluate that these are some lymph nodes or enlargement over here. So aortopulmonary window can be evaluated on both a PA view and a lateral view. Would you like to see some common pathologies? Because you do get them in pathology. If Yes, ma'am. Yes, okay, ma'am. I'll just show you some common pathologies. This is pneumothorax with shift of mediastinum towards the left side. Can you differentiate? You can see vessels over here. Can you see? Like you have vessels in the lung. Over here, you do not see any vascular marking. So a lucent lung, maybe because of emphysema, maybe because of asthma, maybe because of a cavity. But in all those cases, there will be lung markings in the lung. But if you do not see any lung markings, as in this case, and there is shift of mediastinum and collapsed lung is seen over here, this is then pneumothorax. And this is tension pneumothorax because it has led to contralateral mediastinal and heart, right? Now, the next important thing and common thing that we see is pleural effusion. Again, how can you differentiate between any other lesion and pleural effusion is that it is a homogeneous opacity. It has an upper concave margin and the CP angle is completely obliterated or blunt. So this is again pathognomic of pleural effusion, right? Then other lung abnormalities that we see, I'll show you the difference. This pattern of abnormality is just linear, subtle. This is because of the interstitial pattern. Consolidation is a large opacity with air bronchogram in it. Atelectasis is when there is lung volume loss with a subtle opacity. And how do you differentiate between a nodule and a mass? Anyone? It's basically the size criteria. Yes. Nodule is movable. No. Movable nodule, you're talking about breast or some other in nodule in case of something that is projecting in the chest, either on a CT or an X-ray. It's just basically on the size criteria, right? So less than 1 to 2 centimeter is a nodule, but something which is greater than that, that is a mass lesion, right? So basically it's the size criteria. This is then consolidation. Can you see the internal lucencies, branching patterns in them? Can you see? You did not see this in pleural effusion. If you go back over here, it was a homogeneous opacity. Can you see? There is no internal lucency in it. So this is pleural effusion. As opposed to this, in this opacity, you see branching linear pattern over here. Though this is an internal air bronchogram. So this is classical of pneumonia or consolidation. Again, another case. This is a child with hyaline membrane disease, respiratory distress syndrome, in which you see the air bronchogram pattern and the whole of the lung is consolidated because of the lack of surfactant and fluid is in the lung. So this is classical of consolidation, right? And again, another case of consolidation with air bronchogram pattern. Can you appreciate this over here? So this is the differentiating point between it, air bronchogram pattern. Again, another one. And this is then multiple cavities. Can you see cavitating lesions? Again, cystic changes because of either bronchiectasis or lung cavitation and tuberculosis. This is again a cavity with an air fluid level. And cavity with an air fluid level on lung is characteristic of, again, an MCQ question. What is it? Lung. Yes. Lung? Abscess. Yes. So it's a lung abscess. Once you have a cavity with an air fluid level in it, it's a lung abscess, right? So this is then a lung mass. It's more than a nodule. It's a large, well-defined lesion. You do not see an air bronchogram pattern in it. So this is a mass. And as you can see over here, there are some large masses, but these are multiple small nodules. And these are characteristic of metastatic deposits, right? And you have rounded, well-defined masses, nodules with a basal or peripheral preponderance and relatively normal background of lungs. So this is classical for metastatic deposits. In inflammatory lesions, you have underlying lung, which is also pretty abnormal, right?
So again, cardiac enlargement, you can see another thing, these are the lung pathologies, right? The second pathology that you see on the chest x-ray is the cardiac enlargement. So this is an enlarged heart, right? And this is right atrial enlargement, but you can identify, and can you appreciate the carinae angle in this case? This is more than 90 degrees. Can you appreciate it? So this is, again, we discussed it that this range is between carinae angles is between 60 to 75 degrees. So this is increased because of the left atrium and projecting superiorly and displacing the bronchus superiorly. So again, it is its importance over here, and the heart is enlarged, and you can see a valvular replacement as well. Can you see it? Can you appreciate the prosthetic valve in this place? And you have median sternotomy sutures as well, indicative of a prior cardiac surgery. So these are the things that you see over here. And another, you saw the previous one, which was because of left atrial enlargement. Then another, this case, this is a flask-shaped heart. Can you see that you have a very narrow pedicle, and then inferiorly you have a very broad base of the heart. So this is classical of pericardial effusion. Because of fluid, you see an enlarged lower part and a narrow pedicle. Well, in case of cardiomegaly, because of other causes, the mediastinum will also be widened as well, right? And usually the cardiac border over here is very, very well demarcated and clear. Why? Because there are no respiratory movements. There are no cardiac movements during it. The heart is pumping in between, and the outer sac is very uniform and filled with fluid, right? So this is classical of pericardial effusion. Any question up till now, or we'll move on to the next? मैम, ये जो लास्ट वाला आपने समझाया कि द डिफरेंस बिटवीन कार्डियोमेगाली एंड इफ्यूजन, ये आप एक दफा दोबारा समझा दें क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है. अच्छा, एक तो बच्चे मैं आपको समझा तो देती हूँ, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना, उसमें सिर्फ ये है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन में ये होता है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन में आपकी जो बेस है ना हार्ट की, वो बड़ी हो जाती है. पेडिकल ऊपर नैरो ही जाता है, अपर पार्ट, क्योंकि फ्लूइड तो नीचे आ जाता है ना सारा. जब इरेक्ट पोस्चर में आप करेंगे तो पानी नीचे आ जाएगा. अगर कार्डियोमेगाली होगी तो हार्ट पूरा एनलार्ज होगा, वो नीचे से ऊपर तक एक जैसा ही एनलार्ज होगा. आपको समझ आ रही है मेरी? तो इस वजह से इसको जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन वाला जो हार्ट है ना, इसको आप फ्लास्क शेप्ड हार्ट कहते हैं. जिसका फ्लास्क होता है ना कि नीचे से ऐसे घड़ा बड़ा सा और ऊपर से बिल्कुल नैरो. सो इट्स लाइक दैट. So this is the shape which is termed for pericardial effusion, flask shaped heart. ठीक है? Thank you so much, मैम, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट को जो आपने बताया मैम, वो कैसे अप्रिशिएट करेंगे? सॉरी. लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एक तो डबल डेंसिटी शैडो होता है कि हार्ट के आगे लेफ्ट एट्रियम पीछे से एनलार्ज होता है, और तो राइट एट्रियम का शैडो जो नॉर्मल हार्ट शैडो होता है राइट एट्रियम से बनता है, वो आगे रहता है, और पीछे वाला शैडो लेफ्ट एट्रियम का एनलार्ज होके आगे आ जाते थे. इसको डबल डेंसिटी शैडो कहते हैं. एक मार्जिन, एक टाइप ये होती है. फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी जो बे होती है, क्योंकि ये खत्म हो जाती है तो ये थोड़ी सी प्रोमिनेंट और पूरी हो जाती है. इस वजह से ये आपको स्ट्रेटनिंग बॉर्डर की मिल जाती है लेफ्ट साइड पे. देन यू हैव वाइडनिंग ऑफ द कैराइनल एंगल, the angle which is normally 60 to 70, जिसमें इसमें आपको देख रहे हैं, this is more than 90 degrees. It is because the left atrium posteriorly is pushing the left bronchus upwards and therefore widening the carinal angle. Is it clear? लेकिन आजकल में मतलब जब आपको कार्डियक पैथोलॉजी मिलती है तो you go for echocardiography, right? Which is a non-invasive technique, और फिर आपको वो सब चीजों में differentiate कर देता है. But yes, at your point of view, इतना आपको differentiation करना आना चाहिए. Yes, ma'am. Thank you. Welcome. Okay, then we go to the other one. Achha. So we come, do you want me to go to the chest CT along, because we're doing chest, तो हम chest साथ ही खत्म कर लेते हैं, I think, right? Okay, ma'am. So again, ठीक है, so we'll complete the chest, the anatomy of the chest CT of the lungs, lung pulmonary segments, and then we come to the mediastinum, right? So कितने लंग सेगमेंट्स होते हैं बच्चों राइट लेफ्ट के? एनीवन? ठीक है, इट नीड्स टू बी इंटरएक्टिव. अगर खाली मैं ही बोलती रहूंगी तो फिर आपको कुछ नहीं याद रहेगा, ना समझ आएगी. यू नीड टू बी देयर. जी, एनीवन प्लीज? जी इफ्रा? मैम 12 मुझे याद आ रहा है, इसीलिए मैं गलत याद आ रहा है, गलत याद आ रहा है.
एनीवन एल्स? क्योंकि जब आप बोलेंगे मैं बताऊंगी ना, फिर आपको याद रहेगा। मैम 10 सेगमेंट्स होते हैं। राइट, बोथ साइड्स पे, दोनों साइड्स पे 10 होते हैं डॉक्टर साहब? मैम लेफ्ट पे 8 होते हैं, राइट पे 10 होते हैं। यस यस, वेरी गुड। राइट पे 10 लंग सेगमेंट्स होते हैं, लेफ्ट पे यू हैव 8 लंग सेगमेंट्स, ठीक है। राइट पे जो 10 लंग सेगमेंट्स हैं उनमें अपर लोब में यू हैव एपिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देन यू हैव अ मिडल लोब जिसमें मीडियल एंड लैटरल सेगमेंट्स हैं, आई विल शो यू हियर, ठीक है। एपिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स। देन यू हैव, दिस इज द right lobe segments, then this is the medial and the lateral segments। और inferior जो segments होते हैं उनके basically superior apical segment होते हैं, और apical segment के बाद एक anterior basal, lateral basal, posterior basal और medial basal segments होते हैं। 4 basal segments होते हैं और एक apical segment होता है। On the left side, how is it differentiated? Basically left side पे क्या होता है कि left side पे apico posterior मिलके एक ही segment बनाते हैं, ठीक है। The apical and the posterior is united and it forms a single apico-posterior segment and you have an anterior segment। और आपको पता है लेफ्ट में मिडल लोब नहीं होता, तो अपर लोब के जो दो सेगमेंट्स मिडल लोब के होते हैं वो अपर लोब के सेगमेंट्स बना लेते हैं, which is termed as the superior lingular and inferior lingular segment, ठीक है। और जो लोअर लोब होते हैं उसके सेगमेंट्स उसी तरह होते हैं एक्सेप्ट फॉर के एपिकल सेगमेंट उसी तरह है, एंटीरियर बेसल और मीडियल बेसल सेगमेंट्स मिलकर एक सेगमेंट बना लेते हैं, विच इज एंट्रोमीडियल बेसल सेगमेंट। फिर लैटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल जो है उसी तरह होता है। इज इट क्लियर? आई शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल। ये समझ आ रहा है? ये लोब्स। अब ये हम सीटी की एनाटमी पे आ गए। अभी पहले आपने देखा था कि लंग में चेस्ट पीए व्यू पे कैसे आपको, और लैटरल व्यू पे कैसे लंग सेगमेंट्स आपको नजर आते हैं और लंग लोब्स कैसे नजर आते हैं। सेगमेंट्स उस पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, बट सीटी पे वी डिफरेंशिएट देम इनटू लंग सेगमेंट्स। तो इधर पहले हम लोब्स में जाएंगे, फिर मैं आपको सेगमेंट्स बताऊंगी। ये अपर सेगमेंट है सीटी का, और इसमें दिस इज द राइट अपर लोब और लेफ्ट अपर लोब। फिर लोअर, ये हार्ट से अबव लेवल पर है। अगेन अनदर एमसीक्यू पॉइंट, ये हार्ट से ऊपर लेवल पे आपका अपर लोब्स आ रहे हैं, ठीक है। वंस यू कम टू द लेवल ऑफ द हार्ट, फिर क्या आता है, राइट साइड पे अब एंटीरियरली मिडल लोब आ जाएगा और नीचे जो है लोअर लोब आ जाएगा हार्ट के लेवल पे, और लेफ्ट साइड पे लिंगुलर सेगमेंट्स ऑफ अपर लोब आएंगे एंड लेफ्ट लोअर लोब आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये समझ आ रही है आपको बात? अब इसी तरह अब राइट साइड पे जब आप देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर अपर लोब है, हॉरिजॉन्टल फिशर के नीचे ऑब्लीक फिशर के एंटीरियरली मिडल लोब है, और ऑब्लीक फिशर के पोस्टीरियरली जो है लोअर लोब है। इज इट क्लियर? और लेफ्ट साइड पे ऑब्लीक फिशर ही होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल ऑब्लीक फिशर के एंटीरियरली अपर लोब होता है और पोस्टीरियरली लोअर लोब होता है। बच्चे समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और सिमिलरली एंटीरियर सेगमेंट पे अपर लोब है, मिडल लोब है एंड लोअर लोब है, एंड यू ओवर हियर यू कैन सी। सो ये आपको थोड़ा सा सीटी पे भी आइडिया हो जाता है। हार्ट के लेवल से आप याद रखें कि हार्ट से ऊपर अपर लोब्स है, हार्ट से नीचे पे लोअर लोब आता है, और हार्ट के लेवल पे अपर लोब, राइट साइड पे मिडल लोब आता है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ लोअर लोब आता है, और लेफ्ट साइड पे जो है अपर लोब के लिंगुलर सेगमेंट्स आ जाते हैं एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली लोअर लोब आ जाता है, ठीक है। अब सेगमेंट्स अगर आप देखें तो ये अपर पार्ट है, ठीक है, ये अबव द लेवल ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा है। तो ये एपिकल सेगमेंट सेंटर में आ रहा है, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट के अपर लोब का। और लेफ्ट का मैंने आपको बताया था सिर्फ एपिको पोस्टीरियर होता है, एपिकल नहीं होता, तो एपिको पोस्टीरियर आता है, और एंटीरियर आता है, और एपिकल अगर आप देखें तो सुपीरियरली है। अगेन आर्च ऑफ एओर्टा पे द सेम सेगमेंट्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिडल लोब और लोअर लोब जो है आना शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद हार्ट के लेवल पे अगेन सेगमेंट्स कौन से आ रहे हैं, मीडियल एंड लैटरल सेगमेंट ऑफ द मिडल लोब दोनों साइड्स पे आते हैं। मीडियली मीडियल सेगमेंट आता है, लैटरली लैटरल, और लेफ्ट साइड पे आपका लिंगुलर सेगमेंट आता है ऊपर पार्ट में, और लोअर पार्ट में इंफीरियर लिंगुलर आता है। अपर पार्ट में सुपीरियर लिंगुलर एंड डायफ्राम के साथ इंफीरियर लिंगुलर सेगमेंट, ठीक है। अगेन आप जब नीचे जाते हैं तो अब अपर हार्ट के लेवल पे सुपीरियर या एपिकल सेगमेंट्स ऑफ बोथ लोअर लोब्स आते हैं, और नीचे फिर एंटीरियर
लैटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल एंड मीडियल बेसल होते हैं। और यहाँ पे आपको पता है एंट्रोमीडियल बेसल है, लैटरल एंड पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट है। इज इट क्लियर? यस समझ आ रही है बच्चों? यस मैम। मैम ये लिंगुलर जो है ये क्या इसकी मीन्स कुछ कोई अटैचमेंट है जिससे इसको ये टर्म दी हुई है? लिंगुलर बेसिकली जो इसका पार्ट आता है ना आगे मिड अपर लोब का, अपर लोब का जो इंफीरियर एंड होता है ना, बिल्कुल ये एक लिंगुलर टंग से, आपको पता है लिंगुला का मतलब होता है टंग, ठीक है? तो जो जी, आपका जी। ये नजर आ रहा है ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये सेगमेंट जो है, ये जो अपर लोब का पोर्शन आता है ना, ये हार्ट के ऊपर आके टंग की तरह प्रोजेक्ट करता है। ये अगर आप ग्रॉस एनाटमी में देखेंगे तो आपको इसमें ऐसे नजर आएगा। इस वजह से क्योंकि ये पोर्शन बिल्कुल आगे टंग की तरह जाता है, इसलिए इन सेगमेंट्स को जो लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब के होते हैं इनको लिंगुलर सेगमेंट्स कहा जाता है। द अपर वन इज ओके मैम। और मैम मोस्टली लेफ्ट साइड से? जी लेफ्ट साइड पर ही होते हैं लिंगुलर सेगमेंट्स। राइट साइड पे आपका मिडिल लोब होता है जिसमें कि मीडियल और लैटरल सेगमेंट होता है, उसके मुकाबले में उसके आपके इक्विवेलेंट लेफ्ट साइड पे जो है लिंगुलर सेगमेंट्स होते हैं। ओके मैम, इज इट क्लियर? थैंक यू। मैम अगर कोई फॉरेन बॉडी जैसे आती है, आपने बताया कि वो मतलब राइट साइड पे ज्यादा उसके जाने के चांसेस हैं, तो सेगमेंट्स वाइज कौन से सेगमेंट में ज्यादा चांसेस होते हैं जाने के? लोअर लोब में, क्योंकि आपका जो नीचे से आता है ना, आपका जब ट्रेकिया लोअर मेन ब्रोंकस डिवाइड होता है राइट ब्रोंकस, तो राइट ब्रोंकस की जब डिवीजन होती है तो ब्रोंकस इंटरमीडियस आता है, और अगर आपको एनाटमी याद हो, और ऊपर से जो होता है वो राइट जो अपर लोब ब्रोंकस होता है, राइट अपर लोब ब्रोंकस फिर वर्टिकली ऊपर जा रहा होता है, तो उसमें जाना उसके लिए मुश्किल होता है। जो स्ट्रेट पाथ उसके लिए नीचे होता है वो लोअर लोब में जाना होता है। तो इसलिए यूजुअली अगर प्रेफरेंशियली राइट मेन ब्रोंकस में जाता है, एंड देन अगेन प्रेफरेंशियली बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन एंड पोजीशन लोअर लोब में जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अच्छा, ये जो आपकी मीडियास्टिनम की एनाटमी है, वी आर कमिंग जस्ट रफली टू द मीडियास्टिनल एनाटमी। ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे फर्स्ट अबव द लेवल ऑफ हार्ट, और देन विल गो टू द लेवल ऑफ हार्ट, और फिर मैं आपको कार्डिक एनाटमी भी बता दूंगी सीटी पे थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये एंटीरियरली जो दैट स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी ओवर हियर, ये आप याद रखें मीडियास्टिनम में एनाटमी में सबसे एंटीरियरली जो होती हैं वेन्स होती हैं। ठीक है, उसके पीछे आर्टरीज होती हैं। आपने पता नहीं, और आपने शायद ये याद रखा हो या ना रखा हो, किसी जगह अक्सर आप पढ़ते हैं वैन एब्रीविएशन बनाते हैं, वैब एब्रीविएशन बनाते हैं, राइट? तो इसमें आप वैट एब्रीविएशन बना लें। एंटीरियरली वेन्स होती हैं, फिर आर्टरीज होती हैं, और पीछे ट्रेकिया होता है। ठीक है, वैट। सो ये ब्रेकियोकेफेलिक वेन है। ठीक है, लेफ्ट ब्रेकियोकेफेलिक वेन है और राइट ब्रेकियोकेफेलिक वेन है, ये सबसे एंटीरियरली होती हैं। फिर इनके नीचे हम अपर लेवल पे हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आएगी ब्रेकियोकेफेलिक ट्रंक, जो सुपीरियर जाके डिवाइड हो जाएगा राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड में, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अलहदा अराइज करती है आर्ट से, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी भी अलहदा अराइज करती है। तो ये तीनों इसको ड्रेप कर रही थी एंटीरियर टू ट्रेकिया, और इनके आगे फिर वेन्स होती हैं। इज इट क्लियर? और यहाँ पे ये ट्रेकिया है। प्लीज रिपीट कीजिएगा ये थोड़ा सा। ये बच्चों, ये जो वेन्स होती है ना, ठीक है, ये आप एनाटमी अगर याद रखें इस तरह से, सबसे आगे जो आता है ये मेन्यूब्रियम आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है क्लेविकल्स आ रहे हैं, ये इसके पीछे मीडियास्टिनम में सबसे पहले वेन्स होती हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको, ये राइट ब्रेकियोकेफेलिक वेन है, लेफ्ट ब्रेकियोकेफेलिक वेन है, दोनों मिलके नीचे यहाँ पे राइट सुपीरियर वेन का बना देंगे हार्ट के लेवल पे नीचे आके। अभी हम ऊपर हैं, ठीक है, उसके पीछे यहाँ पे वेसल्स होती हैं। ठीक है, वेन्स आगे आ गई, उनके पीछे यहाँ पे वेसल्स होती हैं। राइट ब्रेकियोकेफेलिक ट्रंक होता है जो ऊपर जाके कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन में डिवाइड करता है, उसके पीछे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आती है। अभी ये ब्रेकियोकेफेलिक ट्रंक ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। इनके पीछे ट्रेकिया होता है जो सेंटर में होता है आउट टुवर्ड्स द राइट साइड, और उसके पोस्टीरियरली लेफ्ट साइड पे एसोफेगस आती है। फिर पीछे वर्टेब्रल बॉडीज हैं, आगे थोड़ी सी फैट है, और साइड पे लंग्स हैं। ये मीडियास्टिनल एनाटमी है सीटी पे अपर पार्ट में। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये बच्चों हम नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं। अब वहां से वेसल्स निकल गई थी, अब ये ब्रेकियोकेफेलिक जो वेन्स थी दोनों, इन्होंने मिलकर सुपीरियर वेना कावा बना दिया राइट में, और जो ब्रांचेस निकल रही थी वो कहां से निकली थी? एओर्टिक आर्च से। तो यहाँ पे एओर्टिक आर्च आ गई। इज दिस क्लियर? यहाँ पे ट्रेकिया ही है,
यहाँ पीछे एसोफेगस होगी, और ये प्री वेस्कुलर स्पेस होता है। यहाँ पे बच्चों में थाइमस आता है जो कि बड़ा प्रोमिनेंट और इनलार्ज हो सकता है, लेकिन एडल्ट्स में आफ्टर 4 to 7 years वो रिग्रेस कर जाता है। तो यहाँ पे आपको मीडियास्टिनम में कुछ नहीं मिलना चाहिए एक्सेप्ट फॉर सटल अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड फैट, लेकिन अगर वो ज्यादा हो तो वी थिंक ऑफ अ थाइमोमा और सम ट्यूमर इन दिस एरिया या लिम्फोमा। ठीक है, सो दिस इज द एओर्टा। उसके बाद आप फर्दर नीचे आते जाएं तो एओर्टा जो है यहाँ से जब निकली ये असेंडिंग एओर्टा और हुई, और फिर आर्च बन के यहाँ पे नीचे अब डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा होगी, और ये कराइना का लेवल आ गया वेयर द ट्रेकिया इज डिवाइडिंग इनटू राइट मेन ब्रोंकस एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। ये सुपीरियर वेना केवा है, और यहाँ पे पोस्टीरियरली जो है एजाइगस वेन है जो कि ड्रेन करेगी एजाइगस आर्च के थ्रू सुपीरियर वेना केवा। इज इट क्लियर? अब इससे नीचे लेवल पर आ जाएं तो एओर्टा और एओर्टा इधर ही है, कैराइनल एंगल डिवाइड हो गया, सुपीरियर वेना केवा है। यहाँ पे फिर पल्मोनरी आर्टरी आ गई, लेफ्ट मेन पल्मोनरी आर्टरी वेसल। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे फिर एसोफेगस है ट्रेकिया के ब्रोंकस के पीछे। यहाँ पे कराइना द सेम एनाटॉमी इज रिपीटेड, एजाइगस वेन यहाँ पे चली गई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन पल्मोनरी आर्टरी आ गई बट जस्ट अबव द हार्ट लेवल। ठीक है, अब हार्ट इसके बाद आ जाएगा एक्सक्यूज मी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, एओर्टा है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी। और हमने पहले क्या किया था, लेफ्ट हाइलम ऊंचा था कि लेफ्ट राइट हाइलम ऊंचा था? कौन सा हाइलम ऊंचा था? राइट राइट। चलो Right was- सारा रात रोए तो सुलेखा औरत थी कि मरती हैं। लेफ्ट में लेफ्ट हाइलम ऊपर था, लेफ्ट हाइलम इज हायर। सो सिमिलरली सीटी में अगर आप देखो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी पहले आना शुरू हो गई है, नजर आ रही है आपको? ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी में ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये मेन पल्मोनरी आर्टरी आई, और राइट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ आई? नीचे लेवल पे। तो इसीलिए राइट हाइलम इज लोअर एंड लेफ्ट हाइलम इज हायर इन पोजीशन। ठीक है, और ये फिर एजाइगस वेन। सो दिस इज द सेम एनाटॉमी। अब कमिंग टू द कार्डिक एनाटॉमी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ऑल्दो आप जब एनाटॉमिकली पढ़ते हैं ना तो आप पढ़ते हैं राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट, बट हम रेडियोलॉजिस्ट जो हैं इसको कहते हैं एंटीरियर हार्ट एंड पोस्टीरियर हार्ट। किस लिए? कि हम जो है राइट साइड ऑफ जो हार्ट आपको राइट पे जो कह रहे हैं वो बेसिकली सारा राइट एट्रियम और वेंट्रिकल ज्यादा एंटीरियरली होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पोस्टीरियरली होता है। ये देखिए आप, ये कहने को राइट हार्ट है लेकिन दिस इज मोर एंटीरियर, राइट ऑन द राइट साइड भी है बट इट इज मोर एंटीरियर रादर देन पोस्टीरियर। तो पोजीशन कैसे होती है? राइट एट्रियम ये आ रहा है एंटीरियरली एंड टू राइट साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम के राइट वेंट्रिकल के पीछे है, और फिर लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम के पोस्टीरियरली है। राइट, सो राइट इज मोर एंटीरियर एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज मोर पोस्टीरियर। इज इट क्लियर? यस मैम। यस चले अब फिर टीटी एनाटॉमी चेस्ट की आपकी हो गई है। हम नॉर्मल थोड़ा सा आपको ब्रेन की बोन की एनाटॉमी बता देती हूँ, अगेन बेसिक एनाटॉमी थोड़ी बहुत, ताकि फिर उसके बाद बाकी आपको जो है ना ब्रेन की एनाटॉमी और रफ रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी बता दें। अच्छा, एक तो ये पार्ट्स आपको बच्चों थोड़े बहुत पता होने चाहिए। ठीक है, ये जो पार्ट होती है बोन की जो बिल्कुल जॉइंट के साथ होती है एपिफिसिस होती है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये मैंने डायग्रामेटिक बनाई हुई बट आई विल एक्सप्लेन ऑन दिस वन। ठीक है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये एपिफिजियल प्लेट है, ये एपिफिजियल कार्टिलेज है। ठीक है, इसके जो बाहर पार्ट होता है या उससे पहले जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड एपिफिसिस, दिस इज एपिफिजियल कार्टिलेज। और एपिफिजियल कार्टिलेज के साथ जो शैफ्ट के साथ पार्ट जा रहा है बोन का, दिस इज द मेटाफिसिस। और मेटाफिसिस जब खत्म होता है तो मेन शैफ्ट शुरू होती है, दैट इज द डायफिसिस। समझ आ गई आपको? इज इट क्लियर? एपिफिसिस, epiphyseal plate और epiphyseal cartilage, then metaphysis and then the diaphysis। और कई बात एपिफिसिस के आगे से फर्दर जो प्रोजेक्शन होती है, जैसे टिबियल एपिफिसिस कहते हैं, ये स्मॉल प्रोजेक्शन होती है जो एक्सेसरी ऑसिकल है, यहाँ पे एक्सेसरी ऑसिफिकेशन सेंटर है, तो ये आप कहते हैं। बट अगेन ये पार्ट्स ऑफ बोन आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट। और जब ये यूनाइट हो जाती है एपिफिजियल कार्टिलेज, ये ग्रोइंग एज में होती है, जब ये खत्म हो जाती है तो फिर सिर्फ एपिफिसिस मेटाफिसिस आप वैसे कर सकते हैं, बट दिस प्लेट डज नॉट रिमेन। ये ग्रोथ का निशान है, यहाँ से बोन ग्रो करती है। ठीक है, अगेन आप इस पे अगर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं,
एक्सरे पे हम सॉफ्ट टिश्यूज में कार्टिलेज है, मसल है, हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बट वैसे आपको पता है कि ये जो है जॉइंट स्पेस है पूरी, इसके अंदर मेनिस्काई होते हैं, यहाँ पे जॉइंट फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, और जो आर्टिकुलर सरफेस होती है वो कार्टिलेज से कवर्ड होती है हाइलाइन कार्टिलेज से, ठीक है। और बाकी जो है ये एपिफिसिस वगैरह हम पहले बता चुके हैं। और बाहर इसके लिगामेंट, पहले तो जॉइंट कैप्सूल होता है, जो नी जॉइंट कैप्सूल होता है, उसके बाहर यू हैव वेरियस लिगामेंट्स जो इसके साथ अटैच होते हैं, और उसके बाहर फिर आपके मसल्स और बाकी स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। इज इट क्लियर? समझ आ गई बच्चों? अच्छा, अब इसमें जो बोन के पार्ट्स होते हैं ना बच्चे, बोन इटसेल्फ, उसके स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो आउटर होती है दैट इज कॉम्पैक्ट बोन, और उस दैट फॉर्म्स द कॉर्टेक्स ऑफ द बोन, ठीक है। जो इनर बोन होती है दैट इज कैंसलस बोन। ये हिस्टोलॉजिकली मैं आपको बता रही हूँ कि वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और वो कॉर्टेक्स बनाती है। और सेंट्रल पोर्शन जो है वो कैंसलस बोन होती है, और उसके अंदर मैरो लाई करता है सारा, ठीक है। इसीलिए उसमें स्पेसेस भी होती हैं। तो ये क्योंकि ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है तो ये आपको ज्यादा वाइट नजर आती है, और ये आपको क्योंकि इतनी कॉम्पैक्ट नहीं होती, बीच में बोन मैरो होता है, स्पेसेस होती हैं, तो ये आपको रिलेटिवली लूसेंट नजर आती है। तो इसको आप कॉर्टेक्स कहते हैं और इसको मेडुला कहते हैं, ठीक है। एक्सरे जब करते हैं कहीं तो एक्सरे का क्या इफेक्ट होता है? एक कॉर्टेक्स क्या चीज बता रही, कोई चीज एक्सरे पे व्हाइट नजर आती है तो क्यों नजर आती है, और ब्लैक नजर आती है तो क्यों नजर आती है? एनीवन? मैम ब्लैक जो नजर वाइट डेंस होती है ज्यादा। अगर एक एक्सरे फिल्म में लूं और उसका एक्सपोजर कर दूं मैं, और बीच में कोई चीज भी ना रखूं मैं, वो फिल्म कैसी आएगी? मैडम डेंसिटी डेंसिटी होमोजेनस ब्लैक आएगी, व्हाइट आएगी, कैसी आएगी? ब्लैक ब्लैक आएगी, ठीक है। क्योंकि द इफेक्ट ऑफ एक्सरेज ऑन एन एक्सरे फिल्म इज टू प्रोड्यूस ब्लैकनिंग, या ऑप्टिकल डेंसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो जितनी आप, अगर एक फिल्म को मैंने एक्सपोज किया जिसमें कुछ भी नहीं था, पूरी ब्लैक होगी। अब जितना कोई किसी एक्सरे को रोकेगा उतनी वो उस जगह व्हाइट करेगा ज्यादा। समझ आ रही है आपको? अब ये क्योंकि डेंस ज्यादा है इसने ज्यादा एक्सरेज को रोक दिया। यहाँ जहां बोन के बीच में फिबुला और ये है ना, टिबिया और फिबुला बने हुए, ये टिबिया और फिबुला के बीच में प्यूरी ब्लैक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोन ही थी, सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज थे, मसल्स हैं, वेसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, तो उन्होंने इतना एक्सरेज को नहीं रोका, ब्लैक होगी। इसने सबसे ज्यादा रोका तो बहुत व्हाइट होगी, और इसने उससे कम रोका तो ये इन बिटवीन डेंसिटी है इसके और इसके। इज इट क्लियर? ये समझ आ गई आपको? ये भी कई दफा पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या इफेक्ट होता है, क्या डेंसिटी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। बाकी अगेन ये मेटाकार्पस का आपको पता है, नेक हेड है, नेक है, शाफ्ट है, और फिर जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो बेस होता है, ठीक है। अगेन फिबुला का पार्ट है ये तो फ्रैक्चर भी है फिबुला का, लेकिन एनीवे ये फिबुला का लोअर एंड होता है, इसको लैटरल मेलियोलस करते हैं। ये टिबिया का लोअर एंड है, दिस इज द मीडियल मेलियोलस। ये फिर एंकल जॉइंट है, ये टेलर डोम है, टेलस का बनाता है। तो बेसिकली एंकल जॉइंट जो है टिबिया, फिबुला और टेलस बोन के बीच में बनता है। देन दिस इज लैटरल, sorry Ma'am, sorry to interrupt, can you please repeat the last slide? अच्छा, ठीक है, Okay ma'am, thank you. ठीक है। और इसमें ये जॉइंट बन रहा है, ये कौन सा जॉइंट होगा? मेटाकार्पल मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट हमेशा दो चीजों के बीच में बनता है ना, तो दिस इज मेटाकार्पल बोन है, पार्टिकुलर सरफेस है मेटाकार्पल की, और ये जो है फेलिंग्स की है, ठीक है। अच्छा, इसमें लैटरल अगेन दिस इज द कैल्केनियम, दिस इज द टेलोकैल्केनियल जॉइंट, इसको सब टेलर जॉइंट भी कहते हैं। इसमें टेलोकैल्केनियल भी आता है और टेलोकैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट भी आता है। ये भी आपसे पूछते हैं कि एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, जब आपको एनाटॉमी पता होगी तो यू विल बी एबल टू टेल कि सब टेलर जॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। अगेन एनाटॉमी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको शोल्डर का कह रही थी ना, मैंने कहा मैं आपको बाद में एनाटॉमी बताऊंगी। सो दिस इज अ बेटर एनाटॉमी जिसमें आपको शोल्डर का पता चले। ये स्कैपुला है, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है जो इधर आ रही है। ये जो चीज है ये क्या है जो इधर प्रोजेक्ट कर रही है? ये एनीवन? ये चीज नहीं, एक्रोमियन ये है, एक्रोमियन ये जाती है, ये एक्रोमियन है,
ठीक है, ये जब आपको आएगा, आपको विजुअल रहेगा तो आपको उधर भी याद रहेगा। लैटरली एक रोमियन Spinous जाती है, process. ये कोराकॉइड प्रोसेस है बच्चे, ये कोराकॉइड स्पाइनस प्रोसेस से इधर जाके फिर मीडियली जाके प्रोजेक्ट करेगी ना स्पाइन, तो स्पाइन तो इधर ही रहती है। ये स्पाइन है, ये नजर आ रही है, ये स्पाइन है, ये कोराकॉइड प्रोसेस है, ये एक रोमियन है, ये एक रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, ये वाला, ठीक है, और ये क्लेविकल है। ये फिर ह्यूमरस आ गया, ह्यूमरस का बिल्कुल एपिफिसिस के नीचे ये एनाटॉमिकल नेक आता है, जो हेड और बॉडी सॉरी शैफ्ट का जंक्शन होता है, ये सर्जिकल नेक है, ठीक है। ये भी पूछते हैं कि एनाटॉमिकल नेक हायर है, ये सर्जिकल, तो आपको अगर इमेज हो, देखा हो, तो दिस इज एनाटॉमिकल नेक, दिस इज सर्जिकल नेक, दिस इज द बाइसेपिटल ग्रूव, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, और यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बॉडी है पूरी, ये जो बल्ज थोड़ा सा बाहर आ रहा होता है प्रोजेक्ट, ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल अटैच होता है। उसके बाद अगेन ये आपको पता है मीडियल बॉर्डर है, लैटरल बॉर्डर है, उसके बाद सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस है, मीडियल लैटरल, ये जो है ओलेक्रेनॉन फॉसा है, जिसमें वो ओलेक्रेनॉन आके जब हम ओपन या आर्म करते हैं एल्बो, तो वो इसमें आके करता है। ये लैटरल एपिकॉन्डाइल है और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है। मीडियल एपिकॉन्डाइल पे क्या अटैच होता है? अर्नर नर्व कहीं अटैच होती है? कौन है ये है? अर्नर नर्व तो बच्चे अटैच नहीं ना होती, अर्नर नर्व का कोर्स होता है, कहाँ से राइज करती है, अटैचमेंट तो मसल्स की होती है, टेंडन्स की होती है, लिगामेंट्स की होती है ना, अटैचमेंट तो नर्व की नहीं हो सकती। नर्व तो आपका कोर्स होता है, यहाँ से राइज करती है, इस प्लेक्सस से कर रही है, इधर जा रही है, इस स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रही है ना। तो एपिकॉन्डाइल से क्या अटैच होता है? मीडियल एपिकॉन्डाइल से क्या होता है? कॉमन फ्लेक्सर अटैचमेंट होती है ना, फ्लेक्सर टेंडन सारे इधर से अटैच होते हैं। और लैटरल एपिकॉन्डाइल से क्या होता है? एक्सटेंसर टेंडन, ठीक है। ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपको इसी तरह के सवाल आएंगे जो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। ओके, कमिंग टू द फोर आर्म, टाइम कम तो नहीं हो गया? नहीं है अभी टाइम, चले। आप थक तो नहीं गए? ब्रेक तो नहीं लेनी आप लोगों ने? नो मैम, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा चलें, अच्छा ये ह्यूमरस आ गया। अब दिस नाउ हम फोर आर्म की एनाटॉमी पे जा रहे हैं, ठीक है। अब ह्यूमरस में अगर आप देखें तो ये जो रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है ये कैपिटलम होता है, ठीक है, और ये रेडियल हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है, हेड होता है। फिर उसके बाद रेडियल नेक होती है यहाँ पे, और ये जो आ रही है रेडियल ट्यूबरकल है, जो कि लैटरली प्रोजेक्ट करता है और आर्टिकुलेट करता है इसके साथ, ठीक है। और इसके नेक के अराउंड क्या चीज इसके साथ अटैच होती है, जो कि अटैच इस पे नहीं होती लेकिन अल्ना पे अटैच होती है? क्या चीज होती है? अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, एनुलर लिगामेंट, ठीक है। एनुलर लिगामेंट आप पूछते हैं ना, इसके अंदर रोटेट करता है रेडियस का हेड, लेकिन अटैच इस पे नहीं होता, अटैच वो अल्ना पे ही होता है, ठीक है। अच्छा ये जो है पोस्टीरियरली आ रहा है, ये क्या है? ओलेक्रेनॉन प्रोसेस है। और आगे एंटीरियरली जो इसका जा रहा है, ये ओलेक्रेनॉन प्रोसेस किसमें आके साथ आर्टिकुलेट करता है? लेटरल ट्रोक्लिया। ट्रबल नहीं, लैटरल ट्यूबरकल के साथ तो नहीं करता है, ट्रोक्लिया के साथ करता है ना। ये जो पार्ट है जो आर्टिकुलेट करता है रेडियस के साथ ह्यूमरस का, ये पार्ट कैपिटलम होता है, और ये जो पार्ट है ये ट्रोक्लिया है, जिसके साथ के आपका अल्ना आर्टिकुलेट करती है। अल्ना का फिर एक ट्रोक्लियर प्रोसेस होता है जो एंटीरियरली जाता है, और पोस्टीरियरली जो प्रोसेस इस फोसा के अंदर आता है ये ओलेक्रेनॉन प्रोसेस होता है पोस्टीरियर। ये रेडियल ट्यूबरकल है, रेडियस अल्ना दोनों जा रहे हैं। ये अल्ना रेडियल हेड जो है वो ऊपर होता है, लेकिन अल्नर हेड जो है वो नीचे होता है, ठीक है। लेकिन स्टाइलर प्रोसेसेस दोनों नीचे ही होते हैं। स्टाइलर प्रोसेस इसका इधर है, छोटा सा होता है, और ये सॉरी पीछे चला गया, और ये इसका स्टाइलर प्रोसेस है। और ये सारी कार्पल बोन्स है। कार्पल बोन्स तो सबको आती होंगी, बताएं। वो तो हमने एमबीबीएस में याद की थी, सोफिया लॉरेंट, टींडे पकार, टींडे तेरे कच्चे हैं, या कोई और है? हाँ, इससे याद रखना बहुत जरूरी है। स्केफर्ड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमिड, ठीक है। तो इस निमोनिक से, किसी भी निमोनिक से याद रखें, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। प्रोक्सिमल रो से स्टार्ट होते हैं, आप लैटरल टू मीडियल जाते हैं, 4 प्रोक्सिमल रो में बोन्स हैं, 4 डिस्टल रो में, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेम्बर दोस। अगेन ये लैटरल व्यू ह्यूमरस शैफ्ट का, ये सुप्राकॉन्डाइलर नॉच आ रही है। और जो मैं आपको बता रही थी ना उस वक्त के क्या एनाटॉमी होती है, क्या ये ट्रोक्लियर नॉच है, ठीक है, जिसके साथ ये ट्रोक्लियर नॉच अल्ना में होती है, और ट्रोक्लिया जो है वो ह्यूमरस का पार्ट है, ये आर्टिकुलेट करते हैं। और ये जो प्रोसेस पीछे जा रहा है इसका रेडियस का, सॉरी अल्ना का, दिस इज ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। और ये जो एंटीरियरली प्रोसेस जा रहा है इसका, दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस। ये कोरोनॉइड प्रोसेस है,
ये ओलेक्रेनॉन प्रोसेस है, और बीच में जो नॉच है ये ट्रोक्लियर नॉच है, और ये आर्टिकुलेट करते हैं ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस के साथ, और जो उसका पार्ट है राउंडेड सा वो कैपिटलम है ह्यूमरस का, और वो आर्टिकुलेट करता है रेडियल हेड के साथ, और ये रेडियल ट्यूब्रोसिटी और शाफ्ट है। और ये एंटीरियर फैट पैड है जो नॉर्मली नजर आता है हमें, पोस्टीरियर फैट पैड एल्बो का नहीं नजर आता। अगर वो नजर आए तो इसका मतलब है कि एल्बो जॉइंट में इफ्यूजन है, स्वेलिंग है, ठीक है। एंटीरियर फैट पैड आपको नजर आता है। अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। अगेन ये आपको बोन सारी पता है, पता होनी चाहिए, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रम, पिसिफॉर्म इसके ऊपर आर्टिकुलेट करती है। फिर दोबारा दे जाए ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ये हुक ऑफ हेमेट होता है, ये आपको पता हो, ये सेल शेप होता है। ल्यूनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ल्यूनर शेप होता है जब लैटरल व्यू में आप इसको देखें। ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको एनाटॉमी में पता होनी चाहिए। प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, मिडल है, डिस्टल फेलिंग्स है, मेटाकार्पल है, और ये जो छोटी बोन्स आपको नजर आ रही है दीज आर सेसमोइड बोन्स, जो फुट में ज्यादा कॉमन होती है पर हैंड में भी हो सकती है, जहां पे लिगामेंट्स अटैच होते हैं उसके अंदर ये बोन्स बन जाती हैं, इनको सेसमोइड बोन्स कहते हैं। व्हिच इज द लार्जेस्ट सेसमोइड बोन इन द बॉडी? एनीवन? Patella. 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 Patella is the largest sesamoid bone, और ये कौन से टेंडन में बनती है जी? इंट्राआर्टिक ओ यार, इंट्राआर्टिकुलर, ये बेसिकली आपने क्वाड्रिसेप्स टेंडन और फिर नीचे लिगामेंटम पेटेली उसके अंदर डेवलप करते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये आती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये आपका फिर हिप की एनाटॉमी आ गई, ठीक है। ये सबसे ऊपर आइलियक क्रेस्ट होती है, ये आइलियम इटसेल्फ या आइलियम बॉडी है, ये सेक्रोआइलियक जॉइंट है। इट इज फॉर्म बिटवीन द सेक्रम, lateral mass और एला ऑफ सेक्रम एंड द आइलियक बोन, दिस इज द सेक्रोआइलियक जॉइंट, ठीक है। ये पूरी सेक्रम नजर आ रही है आपको। ये फिर उसके बाद ग्रेटर शियाटिक नॉच है जो पीछे आती है। ये जो है एसिटेबुलर मार्जिन है, ये एसिटेबुलम है। ये छोटा सा पिट होता है फोबिया, जहाँ लिगामेंटम टीरीज अटैच होता है, फेमरल हेड में होता है। ये फेमरल हेड है, ये नेक है, ये इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट है, और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है। ये पोस्टीरियरली इसके ट्यूब्रोसिटी आ रही है, और ये जो फोरामेन आता है ये ऑब्चुरेटर फोरामेन है, एंड दिस इज द फेमरल शाफ्ट, ठीक है। अगेन द सेम थिंग सारी नजर आ रही है आपको। ये इसकी स्पाइन है जो प्रोजेक्ट कर रही है, बाकी चीजें हम कर चुके हैं। इसमें सुपीरियर प्यूबिक रेमस है, इंफीरियर प्यूबिक रेमस है, और ये बॉडी ऑफ प्यूबिस होती है ये। और ये बॉडी ऑफ प्यूबिस दूसरे के साथ जो जॉइंट बताती है इसको क्या कहते हैं? सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। अगेन ये मीडियल फेमरल कॉन्डाइल, लैटरल फेमरल कॉन्डाइल, एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल थोड़ा लार्जर होता है, फीमर होता है। ये इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस होता है जिसमें कि छोटी सी नॉच होती है जिसको इंटरकॉन्डाइलर नॉच हम कहते हैं। ये एमिनेंस है और इसके अंदर ये छोटी सी नॉच है। ये फिर अगेन लैटरल टिबियल कॉन्डाइल है, ये मीडियल टिबियल कॉन्डाइल है, ये फिबुलर हेड है, और ये यंग पेशेंट है तो एपिफिसियल प्लेट अभी नजर आ रही है। ये पेटेला है जिसकी आर्टिकुलर सरफेस है, और ये एडक्टर ट्यूबरकल जिसपे कि एडक्टर मैग्नस आके अटैच होता है, ठीक है। ये टिबियल कॉन्डाइल्स हैं, इसको इसके भी कॉन्डाइल्स होते हैं और इसके टिबिया के भी कॉन्डाइल्स होते हैं, मीट्रोलैटरल और एपिकॉन्डाइल्स, ठीक है। अगेन द सेम थिंग्स, फिबुला, टिबिया, ये फिबुलर नॉच होता है विच इज द नॉच आर्टिकुलेशन जो इनके बीच में होते हैं, सिंडेस्मोसिस के बीच में बनता है, टिबिया और फिबुला के बीच में। दिस इज देन द लैटरल मेलियोलस, और इसका जो फॉसा नीचे आता है एक डिप होता है जिसको मेलियोलर फॉसा कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो है ना इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस है एंकल जॉइंट की, ये एंकल जॉइंट स्पेस है। ये टेलर डोम है जो इसका साथ आर्टिकुलेट करता है, ये आर्टिकुलर फेसेट है इसका, और ये पूरा जो है ये मीडियल मेलियोनस है। और इसको ट्रोक्लिया भी कहते हैं, टेलस का टेलर डोम भी कहते हैं, और ट्रोक्लिया ऑफ टेलस भी कहते हैं। सस्टेन टेक्टुलम टेलाया जो टेलर शेफ्ट होती है जिसपे ये होल्ड करता है। ये उसके बाद ये टेलोनेविकुलर जॉइंट है, हम पहले भी कर चुके थे ना, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट जो है, टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, ये जो प्रोजेक्ट हो रही है नेविकुलर बोन हो रही है, और नेविकुलर बोन क्यूनिफॉर्म के साथ जॉइंट बनाती है तो इसको क्यूनियो नेविकुलर जॉइंट कहते हैं, और मीडियल क्यूनिफॉर्म के साथ जॉइंट बनाती है, ठीक है। और अगेन द सेम थिंग्स, ये सिंडेस्मोसिस जो मैं आपको बता रही, टिबियल प्लेफॉन्ड ये है, इसको कहते हैं टेलर डोम है। लिगामेंट्स लैटरली लैटरल लिगामेंट्स होते हैं, मीडियली मीडियल लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। अगेन द सेम थिंग्स बट ऑन द लैटरल व्यू। पहले हमने एंकल का एपी व्यू देखा था, ठीक है। सब टेलर जॉइंट है, टेलो कैन सब टेलर जॉइंट में क्या आता है? टेलो
कैल्केनियल जॉइंट, ये सब टेलर इसलिए कि टेलस के नीचे है, ठीक है। ये कैल्केनियल ट्यूबरोसिटी है, कैल्केनियस बोन इटसेल्फ है। उसके बाद कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट ये आ रहा है क्योंकि ये लैटरली क्यूबॉइड के साथ आर्टिकुलेट करता है। ये नेविकुलर बोन है, ठीक है। और ये टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट है क्योंकि कैल्केनियम भी आर्टिकुलेट करता है, नेविकुलर बोन भी करती है और टेलस भी करती है, ठीक है। और ये स्पेस होती है छोटी सी दोनों के बीच में, जिसको टार्सल साइनस कहते हैं। ये नेक ऑफ टेलस है, ये टेलर डोम है, ये नेक ऑफ टेलस है, ये हेड ऑफ टेलस है। ये पार्ट्स ऑफ टेलस बोन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। डोम, नेक एंड हेड, ठीक है। और अगेन लैटरल मीडियल मेल्यूलस प्रोजेक्ट कर रहे हैं लैटरली, ठीक है। सो अगेन फुट की बोन्स आती है सबको कि मैं बता दूं? सो तो नहीं गए? मैम एक बार बता दें। अच्छा ये बच्चों ये ऐसे आ रहे हैं ना, ये टिबिया है, मीडियली लैटरली फिब्रा है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट करता है टेलस है, ये कैल्केनियम है, ये नेविकुलर है जो मीडियली आती है, लैटरली क्यूबॉइड आती है, ठीक है। फिर उसके बाद मीडियल, इंटरमीडिएट और लैटरल क्यूनिफॉर्म्स आ जाती हैं, वो नेविकुलर के साथ करते हैं। और उसके बाद क्यूबॉइड आगे करता है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेटाटार्सल्स कहते हैं, ठीक है। इनकी फिर सेसमोइड पॉइंट्स भी होती हैं, ये फिर आर्टिकुलेट करते हैं फिलेंजेस से, प्रॉक्सिमल फिलेंजेस से। उसके बाद इनका इंटरफिलेंजियल जॉइंट होते हैं, ये मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट्स हैं। इसमें दो ही होते हैं, एक और सेकंड, लेकिन इनमें बाकी में तीन तीन फिलेंजेस होती हैं, तो इसलिए प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट भी होता है और डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट भी होता है। बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड मिडल प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल, बिटवीन द मिडल एंड द डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट। और फिर शैफ्ट्स के भी उसी तरह पार्ट्स होते हैं जिस तरह मेटाकार्पस के हमने पढ़े थे। ये बेस है, ये शैफ्ट है, ये नेक है और ये हेड है, ठीक है। जिस तरह हमने मेटाकार्पस के पढ़े थे बिल्कुल उसी तरह मेटाटार्सस की भी एनाटॉमी होती है। एनी क्वेश्चंस? कि समझ आ गया? अच्छा अब बच्चों ये जो है वर्टिब्रल बॉडीज हैं, ये थोड़ी एब्डोमेन इरेक्ट की एनाटॉमी है, ठीक है। तो एब्डोमेन इरेक्ट में आपको क्या चीजें नॉर्मली नजर आती हैं? हमें सॉफ्ट टिश्यूज भी नजर आते हैं, ये गैस शैडोज भी नजर आते हैं और बोन्स भी नजर आती हैं, ठीक है। अब बोन्स में आपको वर्टिब्रल बॉडीज नजर आ रही है। वर्टिब्रल बॉडीज के क्या पार्ट्स होते हैं? ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये जो ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है चीज ये नजर आ रही है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये दोनों पेडिकल्स हैं, ये और उसके बाद ये जो जा रहे हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। समझ आ रही है? समझ आ रही है बच्चों? यस मैम। ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ये नजर आ रही, ये रिब्स हैं। उसके बाद आपको जो चीजें नजर आ रही हैं, ये जो सॉफ्ट टिश्यू शैडो राइट पे प्रोजेक्ट कर रहा है, जो सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी शैडो, ये लिवर का, ठीक है। उसके ऊपर काफी सारी आपको गैस शैडोज नजर आ रही हैं। ये जो गैस शैडो है ट्रांसवर्स कोलन में है, ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद ये जो गैस और फीकल मैटर आ रहा है ये असेंडिंग कोलन में। ये मार्जिन जो आपका नजर आ रहा है ना, ये राइट सॉस और ये नजर आ रहा है ये लेफ्ट सॉस मसल का मार्जिन है, ठीक है। ये जो गैस है ये आपकी स्टमक में है, ठीक है। फिर ये पेल्विक बोन आकी और बाकी छोटी मोटी गैस जो बीच में अदर देन दिस है तो वो फिर स्मॉल बॉल में गैस है, ठीक है। ये लेफ्ट सैक्रोइलिक जॉइंट, इसकी एनाटॉमी हम पहले बड़ी अच्छी तरह आपको मैं बता चुकी हूँ, उस पे कैसे मार्जिन नजर आते हैं, ठीक। और ये जो शेडो नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है लेफ्ट रीनल शेडो है। इसी तरह राइट ऑल्सो बहुत अच्छा नहीं नजर आता क्योंकि ओवर शेडो कर रहा है, लेकिन ये राइट रीनल शेडो है, ठीक है। कुछ समझने ठीक है? समझ आ गया? आगे चलें। मैम अप टू हाउ मच गैस शेडो इज नॉर्मल, कि उससे ज्यादा फिर ऑब्स्ट्रक्शन या उसकी तरफ वो बताएं। गैस शेडोज नहीं होते बच्चे, फ्लूइड लेवल्स होते हैं, ठीक है। गैस की एक तो उसकी हम लेंथ देखते हैं, ठीक है। एक तो जैसे गैस अगर किसी में वैसे भी ज्यादा होगी, छोटे मोटे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लॉन्ग मोर देन एयर फ्लूइड लेवल्स आपको मिल रहे हैं ना, तो देन दैट सिग्निफाइज ऑब्स्ट्रक्शन, कि आगे फ्लूइड जो है रुका हुआ है नहीं। वरना तो गैस शेडो आपको थोड़ी बहुत मिल सकती है लार्ज गट में, स्मॉल गट में, सॉरी स्मॉल गट में भी मिल सकती है, लार्ज गट में ज्यादा कॉमन नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपको एयर फ्लूइड लेवल्स मिले मोर देन 3 एयर फ्लूइड लेवल्स एंड मोर देन 3 सेंटीमीटर लेंथ, तो देन यू वुड थिंक ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, नॉट अदरवाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अच्छा ये जो है ये आपकी सर्वाइकल स्पाइन लैटरल व्यू की, ठीक है। अगेन एनाटॉमी आपको पता है कि सर्वाइकल स्पाइन में जो C1 है और C2 है, इनकी एनाटॉमी डिफरेंट होती है। C1 की बॉडी नहीं होती,
वो यूनाइट कर जाती है C2 की बॉडी के साथ, ओडेंटॉइड प्रोसेस बना देती है, और इसका इंटीरियर आर्च होता है और पोस्टीरियर आर्च होता है। C2 की बॉडी इसके साथ यूनाइट करके ऊपर प्रोजेक्ट करती है, ये एटलांटो एक्सियल जॉइंट बनाती है। दो होते हैं मीडियल और लैटरल एटलांटो एक्सियल जॉइंट्स, ठीक है। ये C2 की बॉडी है। फिर पोस्टीरियरली ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, स्पेस है यहाँ पे। ये जो पोस्टीरियरली जा रहे हैं ये पेडिकल्स हैं। फिर उसके बाद ये लेमिना है और ये स्पाइनस प्रोसेसेस हैं। और ये सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर, इसका ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये ऊपर वाले का इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, और ये दोनों मिलके फेसेट जॉइंट्स बनाते हैं। ये एनाटॉमी समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। ये वर्टेब्रल बॉडी, पेडिकल्स, लेमिना, स्पाइनस प्रोसेस, ये आर्टिकुलर प्रोसेसेस, ये फेसेट जॉइंट्स, और ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क स्पेस, ठीक है। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट 4 लाइंस देखते हैं। ये चारों लाइन पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे से, 1 2 3 4, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? एंटीरियर वर्टिब्रल लाइन, जो वर्टिब्रा के एंटीरियरली मार्जिन से ड्राइव करते हैं। पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन, वर्टिब्रल मार्जिन के पोस्टीरियर वॉल से ड्राइव करते हैं। स्पाइनो लेमिनर लाइन, जिस तरह नाम है उसका, उसी से इसको याद रखें। स्पाइन और लेमिना के बीच में जो लाइन होती है वो स्पाइनो लेमिनर लाइन। और स्पाइनस लाइन, ये पोस्टीरियर स्पाइनस लाइन, जो स्पाइनस प्रोसेसेस को यूनाइट करती है। ये उन्होंने वही आपको दोबारा फेसेट जॉइंट्स वगैरह बताएं। ये चारों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में इनमें से एक लाइन भी नॉन पैरेलल हो, डिस्टॉर्टेड हो, तो इसका मतलब है हम सस्पेक्ट करते हैं कोई अंडरलाइन फ्रैक्चर है या लिगामेंटस इंजरी सीवियर है जो सबलक्सेशन कॉज कर रही है, ठीक है। और इसको हम स्पाइनल मैल अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। अगेन द सेम थिंग, सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि ये मैंडिबल है, ये सारा इस पे आ रहा है, इंफीरियर एल्वियोलर प्रोसेस है, ये मैक्सिला का सुपीरियर एल्वियोलर प्रोसेस है, टीथ है, ये हायोइड बोन है, और ये जो शैडो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है ये एपिग्लॉटिस का है, ये ट्रेकिया नीचे आ रहा है, ये प्रीवर्टिब्रल सॉफ्ट टिश्यूज हैं, और बाकी चारों लाइंस वही हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें, क्वेरी? ये थोरेसिक पे आ गया। थोरेसिक में भी, सॉरी जी मैम, जो जॉइंट स्पेसेस शॉर्टन हो जाती हैं वो क्या शो करती हैं? वो शो करती हैं डीजेनरेटिव चेंजेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, अगर इंटरवर्टेब्रल जॉइंट स्पेस नैरो हो जाए, वर्टेब्रल स्पेसेस नैरो हो जाए, जॉइंट डिस्क स्पेसेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। अब वेलकम। ये इसके बाद वर्टेब्रल बॉडीज हैं बच्चों, ठीक है। इसमें वही आपको जो मैंने एनाटॉमी बताई थी, ये लैटरल पर है कि वर्टेब्रल बॉडी है, ये पेडिकल है, लेमिना है, ये इसका स्पाइनस प्रोसेस जा रहा है, और यहाँ से इनका क्योंकि कोस्टोवर्टेब्रल जॉइंट्स होते हैं तो ये वर्टेब्रल रिब्स ओरिजिनेट कर रही है, ये जो जा रही है, ये नजर आ रही है। सो ये इसकी एनाटॉमी है लैटरल पे। एपी पे कैसे हैं? ये स्पाइनस प्रोसेसेस हैं दरमियान में, ये दोनों पेडिकल्स हैं, ये और ये लैटरल वर्टेब्रल मार्जिन है, और यहाँ से फिर रिब्स अराइज कर रही है लैटरली, ठीक है। थोरेसिक की एनाटॉमी होगी। लंबर की वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वही, सॉरी, डिस्क स्पेसेस हैं, लेमिना है, ये जो है पेडिकल्स हैं, स्पाइनस प्रोसेसेस, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और ये जो है सॉस शैडोज हैं दोनों, ठीक है। अगेन स्कल की एनाटॉमी पे आ जाए। ये कौन सा सूचर है जी? सॉरी जी, बोले। मैम, वर्टिब्रल कॉलम का पूछना था कि काफी पेशेंट आते हैं, अगर हमें लग रहा है कि उनको मसल स्पैज़म है, तो एक्सरे में हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस मिलेंगी या क्लिनिकली हमें देखना पड़ेगा? थैंक यू। आपको क्लिनिकली देखना होता है। एक्सरे तो एल स्पाइन पे तो आपको कुछ नहीं बताएगा ना। अगर आपको उसको क्लिनिकली उसको नर्व कंप्रेशन है या कुछ सिम्टम्स है तो फिर एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एक्सरे पे नहीं पता चलेगा। एक्सरे नॉर्मल भी है तो फिर भी उसको हो सकता है डिस्क बल्ज उसको हो एक्यूट अगर है ट्रॉमा की वजह से या वैसे भी, तो एमआरआई इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक एक, सिंपल बैक एक तो किसी को वैसे भी स्पैज्म की वजह से हो जाती है, बस उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है। इफ यू फील के नर्व कंप्रेशन है या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं तो फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, तो फिर एक्सरे ना कराएं, फिर आप एमआरआई कराएं, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, दिस इज द सैजिटल सूचर, ये लैम्बडॉइड सूचर है, ये दोनों फ्रंटल साइनसेस आ रहे हैं, ये आई बॉल ऑर्बिट का है, ये लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड का मार्जिन आता है, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड अंदर आता है, ये जो दोनों लाइंस आ रही हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट कर रही हैं इसके अंदर। ये एथमॉइड एयर साइनसेस हैं दोनों साइड्स पे जो आ रहे हैं, ये नेजल कैविटी है, ये नेजल सेप्टम है सेंटर में, ये इंफीरियर टर्बिनेट है, और ये जो है ना पीट्रस बोन है जो बीच में प्रोजेक्ट कर रही है, इसके पीट्रस रिज आ रही है जो ऑर्बिट के अंदर प्रोजेक्ट कर रही है।
ये मेस्टॉइड है, जिसके अंदर मेस्टॉइड 8 सेल्स हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। ये इंफीरियर ऑर्बिटल रिम है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल रिम है, यहाँ पे जाइगोमेटिक आर्च आती है, लेकिन वो दूसरे फिर व्यूज देखने उसके लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, ये लैटरल व्यू है। लैटरल में आप देखें ये पिट्यूटरी फॉसा है, नजर आ रहा है? ये पिट्यूटरी फॉसा है, ये एंटीरियर क्लीनर प्रोसेस है, ये डॉर्सम सेला है, और डॉर्सम सेला के ऊपर ये जो है ना पोस्टीरियर क्लीनर प्रोसेस है। ये फिर क्लाइवस है, इसके नीचे जो नीचे जा रहा है, ये इसके अंदर जो एरेटेड पिट्यूटरी फॉसा में नीचे चीज है, ये स्फीनॉइड एयर साइनस है, ठीक है। ये ऑर्बिटल प्लेट्स है, ये फ्रंटल एयर साइनस है, ये कॉरोनल सूचर है, उसपे हमें सेटेटल नजर आया था, इस पे कॉरोनल नजर आता है, और लैम्बडॉइड के लैटरल मार्जिन्स नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेस्टॉइड एयर सेल्स हैं सारे जो आपको नजर आ रहे हैं मेस्टॉइड रीजन में। ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, ये वर्टेक्स है, ये फ्रंटल बोन है, और बाकी आपको पता है ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट सारी करेगी, और ये मैक्सिलरी साइनस ओवरशैडो कर रहे हैं, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं, विल नॉट गोइंग टू द डिटेल। ये हम पहले एंटीरियर, ये हमने नहीं की थी, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है, ये सेक्रम है, ये एल ऑफ सेक्रम है, ये सेक्रोइलियक जॉइंट्स हैं, और ये फिर उसके बाद जो है ना ग्रेटर शियाटिक नॉच यहाँ पर आ रहा है, और ये पोस्टीरियर इंफीरियर स्पाइन है, एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर स्पाइन, ठीक है। सिम्फिसिस प्यूबिस और फोविया ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अगेन वी ऑलरेडी सीन दिस, प्यूबिक रेमाई हम कर चुके हैं। ये कई दफा पूछते हैं आपसे शेंटन लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर फ्रैक्चर हो या लिगामेंटस डिस्ट्रप्शन हो तो ये लाइन डिस्टर्ब हो जाती है, स्मूथ नहीं रहती, इनफैक्ट नहीं रहती, ठीक है। सो वी फिनिश ऑफ विद बोन एनाटॉमी। बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया? आप लोग ब्रेक तो नहीं लेना चाहते? नो मैम। नो मैम, कंटिन्यू करें, 11 पे ब्रेक होगा। ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको जीआईटी की नॉर्मल एनाटॉमी बता देती हूँ। 5 मिनट्स लेना चाहते तो ले लें, 5 मिनट्स। आपकी मर्जी है, द वे यू फील। नहीं, पार्टिसिपेंट अगर सो मच इन्वॉल्व तो रहने दें, चलें बिस्मिल्लाह करें, आगे बढ़े। चले, आपकी मर्जी है, जिस तरह भी आगे, इफ यू नीड अ ब्रेक। अच्छा बच्चों, अब हम ये कंटिन्यू करें, चलें। अच्छा, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हम एनाटॉमी पे आ गए हैं, ठीक है। ये बेस्ट जो हमें नजर आती है, बेसिकली कंसंट्रेटिंग ऑन द ट्रैक्ट एनाटॉमी, ठीक है। ये आपको जो है ना बेरियम स्टडीज पे मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ये स्टमक है, ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है, जिसको ड्यूडेनल बल्ब भी कहते हैं, कैप लाइक होता है। दिस देन कंटिन्यूज, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, थर्ड, और फिर ये ऊपर असेंडिंग जो फोर्थ है, और ये ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्चर आ गया, और यहाँ से जेजुनम स्टार्ट हो गई है। समझ आ रही है एनाटॉमी? अब जो स्टमक के पार्ट्स होते हैं, ये लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है। जहां पे ये एसोफेगस में ओपन करता है, इससे ऊपर वाले पार्ट को जो है फंडस कहते हैं, दिस पोर्शन। बाकी बॉडी है, बॉडी ऑफ स्टमक है। ये वाला डिस्टल जो है एंट्रम ऑफ स्टमक है, जो इस बल्ज के बाद आता है, और बिल्कुल एंड में बिफोर इट एंटर्स इनटू ड्यूडेनम, दिस इज द पाइलोरस और द पाइलोरिक कैनाल। और ये फर्स्ट पार्ट बल्ब की तरह होता है, इसको हम ड्यूडेनल बल्ब कहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद आई विल शो यू इन द नेक्स्ट आल्सो। लेकिन अगर आप देखें तो ये रूगल फोल्ड्स हैं, नजर आ रही है? ये स्मूथ थिन फोल्ड्स होनी चाहिए, रूगल फोल्ड्स। नाउ कमिंग टू द जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइनल एनाटॉमी, तो आप देखें वैल्वुली कॉन्वेंटिस होती है इनकी, जो कंप्लीट होता है, फेदरी सी अपीयरेंस होती है इसकी, बड़े थिन स्मूथ बट कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट आपको ये folds मिल रहे हैं। So this is the normal appearance of stomach, its folds, its margins, and normal appearance of the small intestine. ये समझ आ गई? Now we come to the distal small intestine. This is again a barium meal follow through. Stomach again नजर आ रहा है, और look at जो हम देख रहे थे jejunum के folds, complete folds through and through, but thin, smooth, कोई obstruction नहीं है। ये valvuli conventives है और jejunum में नजर आते हैं। डिस्टल आइलियम ऑलमोस्ट फीचरलेस हो जाती है, उसमें बहुत थिन थोड़े फोल्ड्स होते हैं, तो वो आपको स्मूथ बट अगेन नॉर्मल कैलिबर इस तरह नजर आती है आपको, ठीक है। नाउ कमिंग, दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ स्टमक, duodenum and jejunum and the ileum. This is how they appear normally on an X-ray. This is the normal diameters as well. Now coming to the large gut. लार्ज गट की एनाटॉमी में हमें कैसे चीजें नजर आती हैं? ये अगर आप देखें तो दिस इज द
ileocecal जंक्शन, ये जो नजर आ रहा है टर्मिनल ileocecal जंक्शन है, दिस इज द सीकम, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आइलियक फॉसा में लायक आ रहा है, दिस इज देन द असेंडिंग कोलन, दिस इज द हेपेटिक फ्लेक्सर, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलन, दिस इज द स्प्लेनिक फ्लेक्सर, और फिर दिस इज द डिसेंडिंग कोलन। यहाँ पे आके दिस इज द मेसेंट्री पे होती है, कॉइल्ड होती है, थोड़ी सी लूज होती है, दिस इज द सिग्मॉइड कोलन, और यहाँ पे फिर ये रेक्टम है जिसमें के बल्ब पड़ा हुआ है, रेक्टल बल्ब, फोलिस बल्ब इन्फ्लेटेड है, ठीक है। ये मतलब मार्क हुआ हुआ है, और ये डबल कंट्रास्ट से दिया हुआ है क्योंकि एयर निकली हुई है, तो आपको बड़ी अच्छी इसके अंदर फोल्ड्स भी नजर आ रहे हैं। अब इसके जो फोल्ड्स होते हैं ना, इसमें हॉस्ट्रा है, नजर आ रहे हैं आपको, ये थ्रू एंड थ्रू आउट नहीं जाते हैं, ये पार्शियल होते हैं, इधर से एक इधर आ रहा है खत्म हो रहा है, इधर से एक इधर आ रहा है खत्म हो रहा है। अगर आपको पिछला याद है, जेजिनम में वेल्वुलर कॉन्टिनेंटिस कॉन्टिन्यूस होते हैं, राउंडेड फोल्ड्स, दीज आर नॉट कॉन्टिन्यूस। ये हॉस्ट्रा जो है डिसकॉन्टिन्यूस पार्शियल हैं, बड़े हैं, so this is a normal anatomy again, cecum है, ascending colon है, hepatic flexure, transverse colon, splenic flexure, descending colon, sigmoid, और फिर उसके बाद rectum, ठीक है। Okay, so this is regarding the gastrointestinal tract. अब मैं आपको बता देती हूँ renal tract की normal anatomy, ठीक है। अब दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द रीनल ट्रैक्ट। अब ये तो आपको आईवीयू दिखाया गया, अब हम लोग आईवीयू नहीं कर रहे हैं आजकल, ठीक है, हम सीटी यूरोग्राफी करते हैं, बट द इमेजेस आर ऑलमोस्ट द सेम। वो रिकंस्ट्रक्ट करके आपको इसी तरह इमेजेस देता है, उसकी रेजोल्यूशन बहुत बेहतर होती है, तो वी कैन डू मोर ऑफ दीज, बट अगेन द एनाटॉमी रिमेन्स द सेम। अब ये आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये जो है रीनल आउटलाइन है, राइट किडनी की आउटलाइन है, ये लेफ्ट किडनी की आउटलाइन है, ये इसके केलेसिस है, ये माइनर केलेसिस है, ये मेजर केलेसिस है विच आर ओपनिंग, और ये फिर रीनल पेल्विस है, और ये यूरेटर्स हैं दोनों, एंड बोथ द यूरेटर्स आर देन ओपनिंग इनटू द स्मूथ वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी। केलेसिस जो है ना, ये कप्ड होते हैं, आउटर मार्जिन इसके कप्ड होते हैं, इस तरह से कपिंग होती है, नजर आ रही है, ऐसे कपिंग है, ये नॉर्मल केलेसिस ऐसे नजर आते हैं। अगर इसमें एब्नॉर्मैलिटी हो तो आई जस्ट शो यू हाउ, ये देखें, ये ब्लंटिंग ऑफ केलेसिस है, राउंडिंग होगी कप्स की, नजर आ रही, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और पेल्विस भी बहुत ज्यादा डायलेटेड है, तो ये भी डायलेटेड है, राउंडिंग ऑफ कप्स होगी है, और प्लस ये डायलेटेड है, सो दिस इज हाइड्रोनेफ्रोसिस, एंड दिस इज हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर। अच्छा, आपको पिछला ब्लैडर की आउटलाइन याद है, और साइज भी, यूरेटर्स का साइज और केलेसिस की आउटलाइन, ये नॉर्मल है, यूरेटर भी, और ब्लैडर देखिए कितना स्मूथ ऐसे नजर आ रहा है, एज अपोज टू दिस, इस ब्लैडर को देखिए, ये ब्लैडर जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन ब्लैडर है, ट्यूबैकुलेटेड, आउटलाइन, इरेगुलर, सारा कुछ, तो दिस इज अ न्यूरोजेनिक ब्लैडर, अपीयरेंस ऑफ अ न्यूरोजेनिक ब्लैडर विद रिफ्लक्स एंड लेफ्ट हाइड्रोनेफ्रोस यूरेटर। इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस भी है और यूरेटर भी डायलेटेड है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनेफ्रो यूरेटर। दिस इज जस्ट हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसमें यूरेटर्स डायलेटेड नहीं है, पॉसिबली पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। और अगेन दिस इज अनदर कि ब्लैडर में ट्यूमर है, तो ब्लैडर में वो भी हो सकता है, इरेगुलरिटी, ट्यूमर, कुछ भी हो सकता है, बट वी आर जस्ट concentrating on the normal anatomy. Any questions? Clear? अच्छा जी, CT anatomy कर लें ब्रेन की। अच्छा, अगेन anatomy ब्रेन की, CT anatomy is very important. स्कल है, ये सूचर्स होते हैं इसके बीच में, ये आउटर टेबल होता है स्कल का, इनर टेबल होता है, बीच में डिप्लॉइक स्पेस होती है, और इसके बाहर स्कैल्प होता है और अंदर ब्रेन मैटर होता है, ठीक है। ये बोन विंडो ली गई है, इसमें सिर्फ बोन आपको नजर आ रही है, ना बाहर सॉफ्ट टिश्यूज नजर आ रहे हैं, ना ब्रेन नजर आ रहा है अंदर, ठीक है। अब ये दूसरा केस है, इसमें आपको ब्रेन, ये ब्रेन विंडो हम इसे कहते हैं। हम सीटी को जिस मर्जी विंडो पे देखें, हम लंग विंडो देख सकते हैं, हम ब्रेन विंडो देख सकते हैं, हम सॉफ्ट टिश्यू विंडो देख सकते हैं। सो हमने जो चीज देखनी है हम उस विंडो सेटिंग पे देखते हैं। अगर हमने लंग देखना होगा हम लंग विंडो पे कर देंगे, अगर हमने सॉफ्ट टिश्यू देखना होगा तो सॉफ्ट टिश्यू विंडो कर देंगे, ब्रेन देखना होगा ब्रेन विंडो, जो भी आपने देखना है, राइट। अब इसमें ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स आपको पता है, जो आपकी ब्रेन मैटर होता है, इसमें बाहर कॉर्टेक्स होता है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन शीट्स जो होती हैं वो माइलिन से बनती हैं, और वो फैट होता है, और फैट सीटी पे कैसा नजर आता है, हाइपोडेंस नजर आता है। तो इसलिए व्हाइट मैटर आपको रिलेटिवली ब्लैक नजर आ रहा है और ग्रे मैटर व्हाइट नजर आ रहा है, क्योंकि इट इज मोर डेंस। सीटी भी एक्सरे की तरह है, इट्स जस्ट एक्सरे और सीटी आर द सेम थिंग। सिर्फ सीटी में ये होता है कि आपके फाइन कॉलिमेटेड एक्सरेज होते हैं तो
रेजोल्यूशन इमेज की बहुत बेहतर होती है, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी बेसिकली और जो फिजिक्स बिहाइंड इट इज द सेम इन बोथ एक्सरेज एंड सीटी स्कैन, ठीक है। तो इसमें आपको फ्रंटल लोब है, ये ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, ये फ्रंटल हॉर्न ऑफ बोथ लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये इंटर हेमिस्फेरिक फिशर है, फ्रंटल लोब्स हैं, ये सिल्वियन फिशर है, ये दोनों कैप्सुलो गैंग्लियोनिक रीजन है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये इंटरनल कैप्सूल एंटीरियर लिम्ब है, जीनू है, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, कॉर्डेट सॉरी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, और ये मिड ब्रेन है पीछे, ठीक है। सुपीरियर कॉलिकुलस से पीछे ये जो है कॉर्डोजेमिनल सिस्टर्न आ रहा है पीछे, ठीक है। और ये पोस्टीरियर जो है ना, ये फिर सेरेबेलम थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहा है। बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? नो मैम। समझ आ भी रही है कि नहीं? यस मैम। एक ही बोल रहे हैं, बाकियों को लगता है सो तो नहीं रहे, जाग ही रहे हैं ना? मैम जाग रहे हैं, मुश्किल है बहुत थोड़ा स्लो सा। आवाज, बहुत आहिस्ता से जवाब आ रहे हैं। सो नहीं रहे मुझे मैम। पता, सो नहीं रहे, जाग रहे हैं ना? समझ आ रही है कि नहीं? जी इतनी मैम रात वो तो है थोड़े मैडम, जी से मैडम। टर्मिनोलॉजीज में डिफिकल्टीज आ रही हैं। कॉर्डेट न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो आपने रीजन बताया था, दैट वाज कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये जो है ना बच्चों, कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ जो होता है ना इंटरनल कैप्सूल होता है, जो व्हाइट मैटर ट्रैक्ट होता है मेन ना, इसका इंटीरियर लिम्ब होता है इंटरनल कैप्सूल का, और पोस्टीरियर लिम्ब होता है, और जहां ये मिलते हैं वी शेप होता है, ये जेन्यू होता है। और फिर एक और जो न्यूक्लियस होता है वो लेंटिफॉर्म होता है, जो मीडियली ग्लोबस पैलेडिस से बनता है और लैटरली जो है पुटामेन से बनता है। आप लोगों को आते तो होंगे इसमें से क्वेश्चंस, आपको एमसीक्यूज जी आते हैं मैम, या नहीं? जी मैम, आते हैं जी तो फिर मैम। आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए ना, फिर यू शुड नो वंस यू सी इट तो प्रॉब्ली यू रिमेंबर इट एज वेल, ठीक है। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये इंटरनल कैप्सूल है, एंटीरियर लिम्ब जो आगे से गुजर है, ये जीन्यू है, ये पोस्टीरियर लिम्ब है इंटरनल कैप्सूल का, ये फिर पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। इसमें मीडियली जो आता है ना वो ग्लोबस पैलेडिस आता है, लैटरली पुटामेन आता है, फिर एक्सटर्नल कैप्सूल होता है, फिर क्लोस्ट्रम होता है, फिर एक्सट्रीम कैप्सूल, वो खैर आप रहने दें, इतना ही बहुत है आपके लिए, ठीक है। और ये जो है ना आपकी फिर सिल्वियन फिशर, सिल्वियन फिशर तो पता है ना? सिस्टर्न्स पता है कि नहीं? सिस्टर्न्स क्या होते हैं? मैम लिम्फ नोड्स। मैम वेन्स होती हैं, साइनसेस जो ड्रेन करते हैं डिप्लॉय को। नहीं, जो एक्स्ट्रा नो सेरेब्रल मैम, सीएसएफ स्पेसेस होती है ना, उनको सिस्टर्न्स कहते हैं। जैसे ये सीएसएफ स्पेसेस होते हैं ना क्वाड्रिजन, ये सीएसएफ है ना, आपको पता है फ्लूइड ब्लैक नजर आता है ना, ये लैटरल वेंट्रिकल में सीएसएफ होता है, थर्ड वेंट्रिकल में भी सीएसएफ होता है, तो ये भी सीएसएफ ही है। और ये सीएसएफ बाहर वाले सिस्टर्न्स में, कॉर्टिजेमिनल सिस्टर्न, और ये सिल्वियन फिशर भी सिस्टर्न होता है, मतलब एक सॉर्ट ऑफ फिशर है, सीएसएफ स्पेस है, एक्स्ट्रा सेरेब्रल सीएसएफ स्पेस है। ये सल्कस है जिसके अंदर सीएसएफ लाई करता है। ब्रेन रहने दें, आपके लिए मुश्किल है? नो मैम, मैडम थोड़ा सा करवा दें। बताएं ताकि हमें आइडिया हो जाए। बताएं आप चाहते हैं कि बताएं या ना बताएं? मैम, बताएं। मैम आप है मैडम। आप बता रहे हैं, हम रीड करेंगे तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैम अच्छा ये बताएं। इंटीरियर, ठीक है, ये इंटीरियर क्रेनियल फॉसा है, बोन विंडो है, मिडिल क्रेनियल फॉसा है, पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा है, ये तो आसान है ना। इंटीरियर क्रेनियल फॉसा में फ्रंटल लोब्स लाई करते हैं, मिडिल क्रेनियल फॉसा में टेम्पोरल लोब्स लाई करते हैं, पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में सेरेबेलम लाई करते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फ्रंटल एयर साइनसेस हैं, इनमें एयर होती है, फिर ये एथमोइडल एयर साइनसेस हैं दोनों साइड्स पे, और ये स्फीनोइडल एयर साइनसेस हैं जो नीचे हैं, और ये मेस्टोइड एयर सेल्स हैं, ठीक है। आपको वैसे इतनी मेरे ख्याल से पता नहीं जरूरत है कि नहीं इतनी एनाटॉमी की। अच्छा, ये एंटीरियरली फाक्स है, उसमें एरेक्नॉइड आपको पता है, स्पेसिस ड्यूरा मैटर, मेनिंजीज लेयर्स पता है कौन कौन सी होती है? कौन सी लेयर्स होती है मेनिंजीज की? यस मैडम। मैम ड्यूरा, मैम ड्यूरा मैटर, मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। और पाया मैटर। ठीक है, बिल्कुल। ड्यूरा मैटर ये ग्रीन से, एरेक्नॉइड मैटर इसके नीचे, और पाया मैटर इधर है, ठीक है। और ड्यूरा मैटर के और इसके बीच में जो आती है ना बाहर स्पेस, वो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस होती है। ड्यूरा मैटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस होती है, और एरेक्नॉइड के नीचे सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है। समझ आ गई? ये देखें, नजर आ रही है सब एरेक्नॉइड स्पेस? ये बेसिकली आपकी एरेक्नॉइड
जो मैटर है और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है एरेक्नॉइड स्पेस है, इसी में एक्स्ट्रा सेरेब्रल सीएसएफ स्पेसेस होती हैं, ठीक है। जो आपने को मैंने बताया था सिल्वियन फिशर है, क्वाड्रिजेमिनस सिस्टर्न है, वो बेसिकली ये स्पेसेस है, ठीक है। जी मैम समझ आ गया। अच्छा, ये ब्रेन स्टेम है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और टेंटोरियम होता है जो डिवाइड करता है बिटवीन द सुपीरियर सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स और इंफीरियरली सेरेबेलम को। तो ये टेंटोरियम सेरेबेलाई है, ये शीट ऑफ ड्यूरा मैटर होती है जो इनके सेपरेट करती है, ठीक है। ये फाक्स है, ये ड्यूरा मैटर है, फाक्स पे दोनों साइड्स पे जाता है टेंटोरियम सेरेबेलाई, और ये सेपरेट करता है सेरेबेलम को इंफीरियरली फ्रॉम द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ये कॉरोनल व्यू है और ये एक्सियल व्यू है। कॉरोनल एक्सियल का आइडिया है कि नहीं, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, चलें बस फिर ये वही सिल्वियन फिशर है, इंटर हेमिस्फेरिक फिशर है बिटवीन द टू हेमिस्फेयर्स, और ये जो है दोनों लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, और ये सिल्वियन फिशर्स हैं जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है। और ये गायरस होता है जो ब्रेन का पार्ट प्रोजेक्ट करता है, और एक गायरस और दोनों गायरस के बीच में जो जगह होती है जिसमें सीएसएफ रन करता है, इसको सल्कस कहते हैं। और बाहर ये सीएसएफ स्पेस है, यहाँ ब्रेन है, और इसके बाहर ये मैम सिल्वियन फिशर की क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंट होगी? सॉरी, सिल्वियन फिशर की कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस? मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो इसमें रन करती है, उसकी ब्रांचेस इसमें आके डिवाइड करती है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये अगेन वही, ये थैलेमस है, ये इसमें ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, जेन्यू पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, एक्सटर्नल कैप्सूल, और ये दोनों थैलेमस हैं, नजर आ रहे हैं, थैलेमाई, ठीक है। और ये अगेन सीएसएफ उसमें रन का, ये बॉडी ऑफ लैटरल वेंट्रिकल्स है, उसमें सीएसएफ है, और ये कोरल प्लेक्सस लैटरल वेंट्रिकल्स के अंदर है जो पार्शली कैल्सिफाइड नजर आ रहा है, ठीक है। अगेन थर्ड वेंट्रिकल, बेसल सिस्टम्स, ये सारे वही एनाटॉमी है, द सेम थिंग, कोई ऐसी इसमें चीज नहीं है, ठीक है। वाइट मैटर, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स, ये सेंट्रल सर्कस है, सेंट्रल सर्कस। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि सेंट्रल सर्कस के आगे जो है प्री सेंट्रल गायरस होता है जो कि मोटर कॉर्टेक्स होता है, पीछे पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है जो कि सेंसरी कॉर्टेक्स होता है। तो ये अगेन इसकी सिग्निफिकेंस है, आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये अगेन वही न्यूक्लियाई आपको हाईलाइट कर दिए हैं, थैलेमस, कॉर्डेट, अब समझ शायद ज्यादा क्लियर समझ आ रही हो आपको, ठीक है। और ये जो रीजन होता है ना सिल्वियन फिशर के अंदर जो ब्रेन का पोर्शन होता है, इसको इंसुला कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये सेंट्रल मिड लाइन सबसे व्हाइट मैटर ट्रैक्ट जो दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ता है, व्हाइट मैटर ट्रैक्ट, इसको कॉर्पस कैलोजम है। ये इसका बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम होती है, एंटीरियर पार्ट को जेन्यू कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट को स्प्लीनियम कहते हैं, ठीक है। पॉन्स है, सेरेबेलम है, जीनू है, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम के कौन से पार्ट्स होते हैं? ये मिड ब्रेन होता है, ऊपर वाला पार्ट, फिर पॉन्स होता है, और नीचे वाला जो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम के पार्ट्स हैं। और ये पिट्यूटरी फोसा है जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड ड्राई कर है, ऊपर सेरेबेलम है, टेंटोरियम के नीचे सेरेबेलम है, ठीक है। और ये सप्लाई बताई हुई एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज को सप्लाई करती है, मिडल सेरेब्रल आर्टरीज को, और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। सप्लाई बताई हुई है, ठीक है। और ये नॉर्मल ब्रेन है फुल, और ये ओल्ड ब्रेन है जिसमें कि ब्रेन मैटर श्रिंक हो गया हुआ है और सल्का ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। सो वी फिनिश ऑफ विद दिस। ब्रेन पैथोलॉजीज में आपको नहीं बताती, वी हैव टाइम तो एंड में आपको बता दूंगी। सीटी एनाटॉमी एब्डोमेन बता दूं आपको, थोड़ा सा एब्डोमिनल सीटी आप पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्योंकि लिवर सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने सेगमेंट्स होते हैं लिवर के? 8। ठीक है, किस तरह डिवाइड करते हैं? मैम हेपेटिक आर्टरी या हेपेटिक वेन से करते हैं। आर्टरी या वेन से? मैम वेन से। हेपेटिक वेन से करते हैं, ठीक है। जो आप हेपेटिक वेन राइट, लेफ्ट और मिडल हेपेटिक वेन्स उससे डिवाइड करते हैं, और फिर ये सेगमेंट्स ऊपर और नीचे जो डिवाइड होते हैं पोर्टल वेन से करते हैं, ठीक है। अब ये आप जैसे याद रखें ना, ठीक है।
पोर्टल वेन जो है आपकी, ये जो ऊपर वाले सेगमेंट्स है ना सारे, ठीक है, ये आपके पोर्टल वेन से ऊपर लेवल पे होते हैं, और नीचे सेगमेंट्स जो है ना, लोअर सेगमेंट्स में पोर्टल वेन से नीचे होते हैं। जैसे डिवाइडिंग लाइन जो है वो पोर्टल वेन की होती है, ठीक है, जहां पे ये नजर आ रही है ना, ये पोर्टल वेन नजर आ रही है, यहाँ से लोअर सेगमेंट्स आगे। अब ऊपर जो होता है लेफ्ट लोब को आप लेफ्ट हेपेटिक वेन के इस तरफ, फिर मिडिल हेपेटिक वेन है, और ये जो है राइट हेपेटिक वेन है, नजर आ रही है, वेन्स आपको इस कलर से दिखाई गई है। लेफ्ट हेपेटिक वेन के इधर लेफ्ट लोब में सेकंड सेगमेंट होता है, सेगमेंट 2, उसके बाद उसके नीचे पोर्टल वेन से जब नीचे आप आते हैं तो फिर सेगमेंट 3 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बिटवीन द लेफ्ट हेपेटिक वेन एंड द मिडिल हेपेटिक वेन सेगमेंट 4 होता है। सेगमेंट 4A जो है अबव पोर्टल वेन होता है, और 4B जो है बिलो पोर्टल वेन आता है, ठीक है। उसके बाद मिडिल वेन के बीच में ये सेगमेंट 8 और 7, बिटवीन द मिडिल एंड द लेफ्ट हेपेटिक वेन जो है सेगमेंट 8, और बियॉन्ड द लेफ्ट हेपेटिक वेन जो है सेगमेंट 7 आता है। दिस इज अबव द पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन के नीचे जो है सेगमेंट 5 और 6 आता है। और अक्सर एमसीक्यू जो पूछते हैं, कई दफा ये पूछते हैं कि गॉल ब्लैडर लाइज बिटवीन विच लंग सेगमेंट्स, किन लंग सेगमेंट्स के बीच में लाई करते हैं? ये गॉल ब्लैडर है, सेगमेंट 4 और 5, 4B क्योंकि नीचे होता है गॉल ब्लैडर। सेगमेंट 4 के दो पार्ट्स होते हैं, 4A अबव पोर्टल वेन एंड 4B बिलो पोर्टल वेन। समझ आई आपको? और सेगमेंट 1 बिल्कुल अलग होता है, ये कॉर्डेट लोब होता है, दिस इज एंटीरियर टू पोर्टल वेन। समझ आइए? ये आपको थोड़ा सा खुद भी देखना पड़ेगा, ठीक है, सेगमेंट्स को, बट दिस इज कहाँ पे होगा गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर ये है, ये गॉल ब्लैडर एंड इट इज बिटवीन सेगमेंट 4B एंड 5 के बीच में होता है, ठीक है जी मैम, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट है सीटी एब्डोमेन एनाटमी। क्रॉस सेक्शनल डिटेल्स तो बहुत मुश्किल होती है बतानी, लेकिन ये स्किन है, ये सॉफ्ट टिश्यू फैट बीच में आ रहा है, उसके नीचे एब्डोमिनल वॉल मसल्स हैं, रेक्टस एब्डोमिनस आ रहे हैं, फिर उसके बाद लिवर आ रहा है, ठीक है, दिस इज द लिवर, ये लेफ्ट लोब है इसका, और फिर यू हैव अ लार्जर राइट लोब ऑफ लिवर, ठीक है। उसके बाद ये स्टमक है, ये पेलोरिस है, इसका ये बॉडी है, फंडस है, पेलोरिस है, और इसी के नीचे जेडिनल लूप्स भी थोड़े बहुत आ रहे हैं। फिर ये पैनक्रियाज है, हेड है, बॉडी है, और टेल ऑफ पैनक्रियाज है, और इसके पीछे जो है ना ये स्प्लेनिक वेन रन करती है, जो कि मिल के यहाँ स्प्लेनिक वेन से कॉन्फ्रेंस से फिर पोर्टल वेन में कंटिन्यू कर जाती है। और यहाँ पे दिस इज ऑन द राइट साइड यू हैव द आईवीसी, and on the left side towards the midline, this is the aorta. Then again on the right side you have the right kidney, you have the left kidney, और superior part में you have the spleen. These are the splenic vessels. ये cross sectional anatomy है, ठीक है। This is the vertebral body, spinal canal, the lamina, then the spinous process, and these are the erector spinae, posterior spinal muscles. और ये दोनों जो आ रहे हैं ये psoas muscles हैं, right and left psoas muscle. समझ आ रहा है? ये फिर एब्डोमिनल वॉल मसल्स आते थे, क्वाड्रेटिस लंबोरम। ये दिस इज एट द अपर लेवल, ठीक है। और लोअर लेवल पे अगर हम देखें, सॉरी आपको स्लाइड पूरी नजर आ रही है वैसे? अब नजर आ रही है शायद। अच्छा, लोअर लेवल पे अगर आप देखें तो दिस इज अगेन कि यहाँ पे गट आ गई है क्योंकि ऑर्गन सारे खत्म हो गए। आईवीसी राइट पर है, एओर्टा लेफ्ट पर है, गट लूप्स हैं, सॉस मसल है, एरेक्टर स्पाइनी मसल्स हैं, और अगेन लेयर्स ऑफ मसल्स आपको बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। सबसे बाहर एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर इंटरनल ओब्लिक, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, और ये दोनों रेक्टस एब्डोमिनस, और ये फैट है, ठीक है। एंड अगेन कॉर्नल में द सेम थिंग, लिवर, स्टमक, स्प्लीन, किडनी, अपर पोल, मिड पोल, लोअर पोल, रीनल पेल्विस है, सॉस मसल्स हैं, वर्टेब्रल बॉडीज हैं, सीकम यहाँ पे आ रहा है, लियाकस मसल्स विद लियाकस, और बाहर ग्लूटियाई मसल्स, और यहाँ पे फिर डायफ्राम आ रहे हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, उसके बाद क्या? अच्छा, ये पेल्विस की सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एनाटमी है, नॉट वेरी हाई फाई थिंग, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगेन मेल पेल्विस में व्हाट आर द मेन स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आते हैं? सबसे आगे जो नजर आता है दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर, posterior to that you have the prostate gland, and then posterior to that you have the anorectal canal.
उसके laterally again anorectal canal के levator and eye muscles होते हैं, and this fatty component that you see laterally over here, this is the isquioanal or the ischiorectal fossa, और इसके laterally जो है obturator internus muscle है, ठीक है, obturator internus muscle है, यहाँ पे आ रहा है. Then again you have other posterior gluteus muscles, gemellus, ये तो सारी muscle anatomy आ जाती है. यहाँ पे femoral vein, artery and nerve, you know सबसे common जो fav आपका run करता है artery जो है, that is laterally and the vein is medially located. और उसके बाद this is the anatomy, और ये rectus abdominis यहाँ पे आके ischium bone, इस पे pubic bone पे आके attach होता है. So this is the normal anatomy. This is a coronal section of the same. Prostate gland नजर आ रहा है, और उसके पीछे ये दोनों जो है ना fluid like structures, ये seminal vesicles हैं. Again ileum, ये वही bone है, iliac bone है, ये coronal section है, मतलब इस तरह से आपने straight लिया हुआ patient को. Femoral head again. So this is the normal anatomy of the pelvis. Coming to the female anatomy of female pelvis, तो ये anatomy भी MR पे ज्यादा अच्छी नजर आती है. ये क्रॉस सेक्शनल एनाटमी एक्सेल, ये आगे जो आपको नजर आता है फ्लूइड फील्ड, ये ब्लैडर है. पोस्टीरियर टू दिस इज द यूट्रस. यूट्रस में सेंटर में ये एंडोमेट्रियम है, साइड पे इसका ये मायोमेट्रियम है सारी. दिस स्ट्रक्चर दैट यू सी विद स्मॉल फॉलिकल्स और सिस्ट, दिस इज द राइट ओवरी, एंड दिस स्ट्रक्चर दैट यू सी ओवर हियर, दिस इज द लेफ्ट ओवरी विद स्मॉल फॉलिकल्स इन इट. और ये पीछे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें एयर है ब्लैक, ये जो है रेक्टम है, ठीक है. और अगेन ये लैटरल पेल्विक वॉल मसल्स, ये आइलिक बोन है, और ये फिर सेक्रम आ रही है. सो दिस इज ऑल दोस नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो हम लोग एनाटॉमी में देखते हैं, ठीक है. दिस इज अगेन अनदर व्यू. ओवरी ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं, और पीछे रेक्टम नजर आ रहा है, और ये ऊपर के लेवल पे यूट्रस खत्म हो गया, वी गॉन एट हायर लेवल, ठीक है. तो ये कोरोनर सेक्शन है. Again you can see T1 और T2, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट बेसिकली अगेन पेल्विस यूट्रस यू कैन सी के एंडोमेट्रियम सेंटर में नजर आ रहा है, ये जंक्शनल जोन है, देन यू हैव द मायोमेट्रियम विद इट, ठीक है. ये सैजिटल सेक्शन है. सैजिटल में आपको क्या नजर आ रहा है, ये प्यूबिक बोन है यहाँ पे. ओवर हेयर यू हैव द यूरिनरी ब्लैडर, पोस्टीरियरली इसके यूट्रस है पूरे जिसमें एंडोमेट्रियम है, और पोस्टीरियरली फिर रेक्टम है. ये प्री सेक्रल स्पेस है जिसमें फैट है सारी, और ये फिर सेक्रम इटसेल्फ है जिसमें से के नर्व्स बाहर निकल रही हैं, ठीक है. ये सीकम खैर बाकी स्ट्रक्चर्स तो एक पे देखना आपको मुश्किल होता है, वंस यू सी दी अदर स्कैन्स तो आपको पता चल जाएगा. और ये नीचे पोर्शन जो इसका आ रहा है, ये सर्विक्स का पोर्शन है. ये यूट्राइन बॉडी है, ये यूट्राइन फंडस है, सेंट्रल एक्योजेनिक एंडोमेट्रियम, सेंट्रल हाइपर इंटेंस जो है एंडोमेट्रियम आ रही है, और ये सर्विक्स है, ठीक है. एनी क्वेश्चंस? स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी आप लोग करना चाहेंगे? I'll just show you basic कॉर्ड की एनाटॉमी बता देते हैं, ठीक है. Just basic so that you have an idea कि इसमें क्या है, बाकी we don't know, have to go into the details of it. ये सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड की है, ठीक है, सर्वाइकल रीजन पे. और T2 जो स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी है ना, that we can see on the MR. We cannot see it on the CT or an X-ray. We need to see it on an MR, right? So this is an MR T2 weighted scan. ये सेंटर में जो एरिया नजर आ रहा है आपको, ये स्पाइनल कैनाल है, ये वर्टिब्रल बॉडी है, C2 वर्टिब्रल बॉडी है, T डिस्क है, वर्टिब्रल बॉडी है, ये इसके लैटरल मैसेज हैं वर्टिब्रल बॉडी के. और आपको पता है इसके अंदर एक वर्टिब्रल फोरामेन होता है जो सर्वाइकल वर्टिब्रा में होता है, एंड दिस फोरामेन हैज द वर्टिब्रल आर्टरी रनिंग इन इट, ठीक है. तो यहाँ पे स्पाइनल कैनाल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. And all around the spinal cord that you see is the white, this is the fluid. This is the fluid around the spinal cord. ठीक है. तो spinal cord है. Posteriorly ये जो ligament इसको cover करता है यहाँ पे, this is ligamentum flavum. ठीक है. और यहाँ पे vertebral bodies के पीछे जो है posterior longitudinal ligament आता है. Is this clear? ये anatomy समझ आई है आपको? और similarly T2 पे भी ऐसे ही है, ठीक है. ये आपका जो है सेरेबेलर टॉन्सिल है, ये स्कल का बेस है, ऑक्सीपिटल बोन है, ये CSF है, ये सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो गई है, यहाँ से जाके सर्वाइकल और फिर ये थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड में स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यू कर जाएगी. एंटीरियरली ये स्पेस है, ये जो पीछे व्यू था ना, ये T2 था. ये आपको खैर समझ बाद में आएगा. T2 वेटेड है जिसमें फ्लूइड व्हाइट नजर आता है, और T1 वेटेड है जिसमें फ्लूइड ब्लैक नजर आता है, ठीक है.
So this is in which the fluid is black, T1 weighted है. ये सराउंडिंग CSF है स्पाइनल कॉर्ड के, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ है थोरैसिक कॉर्ड, ये वर्टिब्रल बॉडीज है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं, ठीक है. इनमें चेंजेस हैं, नैरो हो गई हैं, फ्लूइड कंटेंट कम है, फिर उसके ये सारा हमें नजर आता है. और इफ यू गो पोस्टीरियरली ये सॉरी ये T2 में ये T1 वेटेड, ये T1 वेटेड है. फ्लूइड ब्लैक अगर है तो T1 है, आप इतना ही बस याद रखें. CSF या फ्लूइड ब्लैक है तो T1 है. कहीं पे भी ब्रेन में कर रहे हैं आप, पेल्विस में कर रहे हैं, एब्डोमेन में कर रहे हैं, और कहीं फ्लूइड वाइट है तो फिर वो T2 वेटेड इमेज है. आपके लेवल पे इतना ही पूछेंगे, इतना ही आपको बताना चाहिए, ठीक है. और ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये नर्व्स निकल रही हैं, ये नजर आ रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व निकल रही है और ये फोरामेन में जा रही है. तो आपको जो मैं कह रही थी ना, पहले किसी डॉक्टर साहब ने सवाल किया था, बैक एक हो तो हम एक्सरे करा लें, एक्सरे पे कुछ भी पता नहीं चलेगा. अब इसकी MR की रेजोल्यूशन इतनी अच्छी है कि ये नर्व अगर कहीं कंप्रेस होगी, कोई ऑस्टिफाइड होगा, इसको कंप्रेस करा होगा, आपको नजर आ जाएगी. तो अगर इफ यू थिंक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं तो फिर आप MR ही कराएं, दैट विल बी डायग्नोस्टिक कि किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है और क्या चीज ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, क्या प्रॉब्लम कर रही है, कंप्रेशन है या नहीं, नर्व कंप्रेशन या कॉर्ड कंप्रेशन. ठीक है. बाकी वी हैव ऑलरेडी डन दिस एटलांटोएक्सियल जॉइंट्स वगैरह, आई वोंट गो इनटू द डिटेल, टाइम भी कम है मेरे ख्याल से. और ये एक्सियल है, ठीक है. एक्सियल में अगर आप देखें, ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये लंबर वर्टिब्रल लेवल पे हम आ गए, ठीक है. पहले मैंने जो आपको दिखाया था, ठीक है, पहले एक्सियल कर लेते हैं. ये लंबर वर्टिब्रल बॉडी, ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये इसका पेडिकल है, ये इसका लेमिना है, ये लेमिना है, ये स्पाइनस प्रोसेस है. ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये नर्व रूट्स हैं, कॉर्डा इक्वाना नर्व रूट्स हैं. ये वर्टिब्रल कैनाल है, ये स्पाइनल कैनाल है इसका, ठीक है. और यहाँ के अंदर इस तरह आपको नर्व्स इतनी अच्छी निकलती हुई नजर आती हैं, ठीक है. इसी का ये सेडेटल सेक्शन है. और ये कौन सा सेक्शन है, T2 है, T1 है, बताएं. T2 इसलिए कि फ्लूइड जो है CSF इसमें वाइट नजर आ रहा है, ठीक है. ये वर्टिब्रल बॉडीज हैं, बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसेस हैं जो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है. ये फिर स्पाइनस प्रोसेस है. मैम जी, सॉरी sorry. टू इंटरप्ट मैम, मे बी आई वाजंट देयर, आप T2 और T1 का जरा फिर से बता दें. यार वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट आपके लेवल पे इतना याद करना इज इम्पोर्टेंट एंड इनफ कि T1 वेटेड में फ्लूइड जो है ना वो ब्लैक नजर आता है, ठीक है. और T2 वेटेड में फ्लूइड वाइट नजर आता है, ठीक है. मैम व्हाट्स द एप्लीकेशन Okay, फॉर ma'am. टी? हम लोग जब भी इमेजिंग करते हैं, हम T1 T2 वेटेड सीक्वेंसेस दोनों करते हैं. हम कोई भी ऐसा MR नहीं करते जो सिर्फ एक सीक्वेंस पे करें, ओके, थैंक यू. क्योंकि अब T2 पे पैथोलॉजी ज्यादा नजर आती है और T1 अगर आप देते हैं तो आप कंट्रास्ट T1 पे दे देते हैं, वो फिर बहुत हाई-फाई चीजें हो जाएंगी. मतलब देखिए, बट वी ऑलवेज डू बोथ द इमेजिंग. ऐसा नहीं होता, कोई भी MR विदाउट इन दो सीक्वेंसेस के बगैर नहीं होता, एडिशनल सीक्वेंसेस भी करते हैं, ठीक है. अब ये जो है ना कोरोनल व्यू है, वर्टिब्रल बॉडीज है, डिस्क स्पेसेस हैं, ये आपको लिवर नजर आ रहा है, ये स्प्लीन नजर आ रही है, ये सॉस मसल्स नजर आ रहे हैं साथ जाते हुए, ये लैटरली फोरामेन है जिसमें से नर्व्स निकल रही हैं. तो द एनाटॉमी एंड थिंग्स आर रियली वेरी क्लियर. ये जो है सेक्रम आपको नजर आ रही है, पेल्विक बोन है. तो आपको कोरोनल, एक्सियल, सैजिटल तीनों सेक्शंस मैंने दिखा दिए, किस तरह आपको क्या क्या चीजें और किस तरह आपको नजर आ सकती हैं इसमें, ठीक है. तो अगेन एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी. ओके, नाउ टाइम भी आपका शॉर्ट ही है मेरे ख्याल से. अब क्या रह गया है आपका, तकरीबन हमने सारा कवर कर लिए. इफ यू वांट द कॉमन ब्रेन पैथोलॉजीज 2-3 स्लाइड्स हैं, इफ यू वांट तो आपको दिखा दूं, और अगर आप थक गए हैं तो वी कैन स्टॉप इट. यस मैम. क्या ब्रेन और मैम दिखा दें. जाते हैं. अच्छा, ये आपसे अक्सर क्योंकि कॉमन पूछा जाता है MCQ में भी, तो इसलिए मैंने कहा था 2-3 चीजें आपको मैं सिर्फ दिखा दूं, ठीक है. अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, एक तो ब्लड आपको CT पे हाइपरडेंस नजर आता है. हाइपरडेंस का मतलब होता है ब्लैक वाइट, ठीक है. ये CSF ब्लैक नजर आता है. व्हाइट मैटर मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें माइलिन होती है, हाइपोडेंस होता है. ग्रे मैटर रिलेटिवली हाइपरडेंस होता है. और ये बहुत हाइपरडेंस जो नजर आ रहा है ये हेमाटोमा है. और ये एक्स्ट्रा ड्यूरल है. क्यों एक्स्ट्रा ड्यूरल है? क्योंकि ये बाय कॉन्वेक्स है. बाय कॉन्वेक्स समझ आ गया. लेंटिकुलर की इसका आउटर मार्जिन भी कॉन्वेक्स है और इनर मार्जिन भी कॉन्वेक्स है, समझ आ गया. ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है. और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज यूजुअली ट्रॉमा या फ्रैक्चर के साथ होता है.
अब इसके ऑपोजिट में आपको दूसरा दिखाती हूँ, ये क्या है, ये सबड्यूरल हेमरेज है। ये कॉनकेवो कन्वेक्स होता है या क्रिसेंट शेप होता है, नजर आ रही है? इसका आउटर मार्जिन कॉन्वेक्स है, इनर मार्जिन जो है कॉनकेव है। उसका ये था लेंटिकुलर या बाय कॉन्वेक्स, ये नजर आया? बाहर से भी ऐसा है, अंदर से भी ऐसा है। ये बाय कॉन्वेक्स है, लेंटिकुलर है, और ये एक्स्ट्रा ड्यूरल है, और ये क्या है, सब ड्यूरल है। और ये यूजली ओल्ड एज में विद ट्रिवियल ट्रॉमा भी हो जाता है, इसके लिए फ्रैक्चर की जरूरी नहीं है। और ये जो है सूचर से लिमिटेड नहीं होता है, जबकि वो सूचर से लिमिटेड होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल, ठीक है। तो बट अगेन द शेप इज इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये जो है, अब आपका ये जो फ्लूइड है, ये ब्लड है, ये कहाँ आ रहा है, ये एक्स्ट्रा सेरेब्रल सीएसएफ स्पेसेस में है, सुप्रासेलर सिस्टर्न में है, सिल्वियन फिशर में आ रहा है। ये सबएरेक्नॉइड हेमरेज है। आपको मैंने स्लाइड दिखाई थी ना शुरू में सबएरेक्नॉइड हेमरेज में, कि सबएरेक्नॉइड स्पेस जो है कहाँ पे आती है, सल्साई के बीच में जा रही होती है और सिस्टर्न्स में होती है। तो दिस इज दैट स्पेस जो पूरी, सो दिस इज सबएरेक्नॉइड हेमरेज। समझ आ गई? ये नॉर्मल आपका जो ब्रेन मैटर में सल्काई में ये होता है, ब्लैक होता है, फ्लूइड होता है। अगर ये ब्लैक एरिया रिप्लेस हो जाए हाइपरडेंस ब्लड से, तो फिर इसको सबएरेक्नॉइड हेमरेज आप कहेंगे। समझ आ गई? तो एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल और सबएरेक्नॉइड, इस तरह अपेयरेंस में डिफरेंट होते हैं और नजर भी फर्क आते हैं, ठीक है। मैम ये सबएरेक्नॉइड हेमरेज क्यों हुआ है? सबएरेक्नॉइड हेमरेज की कॉमनेस्ट कॉज जो होता है ना, रप्चर्ड बेरी एन्यूरिज्म होता है, लेकिन वैसे इसके अलावा ट्रॉमा और दूसरी चीजों से हो सकता है, बट मोर देन 80% केसेस में बेरी एन्यूरिज्म का रप्चर होता है। इसीलिए फिर अगर सबएरेक्नॉइड, सॉरी मैम नजर आएगा इस पे? नहीं, आपको ये सिर्फ होता है कि जो मैक्सिमम जहां ब्लड आ रहा हो ना, तो आपको शक होता है उधर है। इसीलिए अगर सबएरेक्नॉइड हेमरेज हमें टेबल पे मिलता है ना सीटी में, तो उसका प्रोटोकॉल है कि आप उसका सीटी एंजियो उसी टेबल पे उसी वक्त कर देते हैं, क्योंकि इंसिडेंस इज सो हाई। फिर आप पिकअप कर लेते हैं कि एन्यूरिज्म कौन सा है, एक है, दो है, कौन सा रप्चर हुआ है, और फिर उसकी आप कॉइलिंग कर सकते हैं। अब तो इंटरवेंशन आ गई है, तो हम हमारे सेटअप में तो उधर अफीरी में उसी वक्त कॉइलिंग भी कर देते हैं, या फिर न्यूरोसर्जन से बैठ के डिपेंडिंग नेक विड्थ क्या है वो फिर उसकी सर्जरी कर सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि साथ आप सीटी एंजियो भी कर दें, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। ये वेंट्रिकुलर हेमरेज है, वेंट्रिकल्स में पूरा वाइट ब्लैक होना चाहिए फ्लूइड, लेकिन इसमें आपको नजर आ रहा है ब्लड। तो क्योंकि पेशेंट ऐसे लेटा होता है जब सीटी करते हैं, तो अगर वेंट्रिकुलर हेमरेज हो तो वो नीचे फ्लूइड लेवल देते हैं आपको, ठीक है, फ्लूइड लेवल। तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है ये, ठीक है, ये ऐसे है। और ये इंट्रा पेरेन्काइमल ब्लीड है, ये पेरेन्काइमा के अंदर है। वो सारे एक्स्ट्रा एक्सियल है। एक्स्ट्रा एक्सियल और इंट्रा एक्सियल का कॉन्सेप्ट है, क्या होता है एक्स्ट्रा एक्सियल और क्या होता है इंट्रा एक्सियल? एनीवन? शाबाश बेटा। ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंट्रा एक्सियल है या एक्स्ट्रा एक्सियल है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एक्सियल होता है उसका मतलब होता है कि ब्रेन क्रेनियल कैविटी के तो अंदर है, लेकिन ब्रेन के अंदर नहीं है, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है, सब ड्यूरल हेमरेज है, सबएरेक्नॉइड हेमरेज है, वो एक्स्ट्रा एक्सियल है, क्रेनियल कैविटी के अंदर है पर ब्रेन के अंदर नहीं है। समझ आइए? ये स्पेस में रन कर रहा है, ये स्पेस में है बाहर, ठीक है, ये भी बाहर स्पेस में है। तो ये सारे एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेजेस हैं, इंट्राक्रेनियल बट एक्स्ट्रा एक्सियल, नॉट इंट्रा एक्सियल, ठीक है। एज अपोज टू दीज थ्री थिंग्स, ये जो चीज है इंट्राक्रेनियल है बट इंट्रा एक्सियल है, ये ब्रेन पेरेन्काइमा के अंदर है। तो इसी तरह जो ट्यूमर्स होते हैं, इन्फेक्शंस होती हैं, हेमरेज होता है, हम ब्रेन के अंदर इंट्रा एक्सियल और एक्स्ट्रा एक्सियल के उससे लेबल करते हैं। और इंट्रा एक्सियल का मतलब है ब्रेन पेरेन्काइमा के अंदर, और एक्स्ट्रा एक्सियल का मतलब है कि क्रेनियल कैविटी में तो है लेकिन ब्रेन पेरेन्काइमा के बाहर है। इज इट क्लियर? समझ आ गई? तो ये इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज है या इंट्रा एक्सियल हेमरेज है, ठीक है। ये भी इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज है। ये अगेन डायलेटेड वेंट्रिकल्स हैं, पिछले आपने देखे कितना नॉर्मल स्मूथ नैरो वेंट्रिकल सिस्टम होता है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस के साथ है। सो दिस इज अ केस ऑफ डायलेटेड वेंट्रिकल्स, ठीक है। आई थिंक टाइम तो आपका पूरा हो गया है, काफी ज्यादा आपने कर दिया। एनी क्वेश्चंस तो प्लीज आई विल बी मोर देन वेलकम टू आंसर यू।
मैम एक ये चीज पूछना चाह रहा था कि वी नो एक्सरेज आर कार्सिनोजेनिक, तो इज देयर अ सेफ मार्जिन के मतलब अगर मैंने आज किसी पेशेंट का एक्सरे करवाया तो मैं इतने टाइम के बाद दोबारा एक्सरे करवाऊं ताकि जो मतलब डीएनए डैमेज हुआ है या फ्री रेडिकल इंजरी जो भी कुछ हुआ है वो सब उतने में रिपेयर हो जाए? अच्छा देखिए, देर इज अकॉर्डिंग टू द रेडियोलॉजी रेडिएशन प्रोटेक्शन देर इज नो सेफ लिमिट, देर इज नथिंग इज सेफ। आपके लिए 3 चीजें जो है ना एक्सरे एडवाइस करने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले जस्टिफिकेशन एंड देन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जस्टिफिकेशन है कि आप एक्सरे जो एडवाइस कर रहे हैं क्या वो जरूरी है, इज इट रिक्वायर्ड। आप जो बेनिफिट रिस्क रेशियो देते हैं, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि पेशेंट को इससे डायग्नोसिस में फायदा होगा तो आप जरूर कराएं, और वो अगर आपका ज्यादा है तो फिर आपने 2 दफा दोबारा भी कराना है, आप करा सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें वो किसी और मोडालिटी से, फर्ज करें आप अल्ट्रासाउंड पे वो चीज पिकअप कर सकते हैं जिसमें रेडिएशन हैजर्ड नहीं है, तो फिर आप उसका एक्सरे क्यों कराएं। अब यहाँ पे अक्यूट गॉल ब्लैडर कैलकुलस है, आप उसके लिए अल्ट्रासाउंड इज गुड इनफ, आप एक्सरे क्यों कराएंगे उसका। तो एक्सरे शुड ओनली एंड ओनली बी डन इफ इट इज रिक्वायर्ड। एक्सरे ऐसे नहीं करना चाहिए, और अगर रिक्वायर्ड है तो फिर दूसरी चीज होती है ऑप्टिमाइजेशन, जो हम लोग करते हैं कि हमने फिर केवी ज्यादा रखा, उसको कॉलिमेट किया, मिनिमम एरिया एक्सपोज किया, मिनिमम, ताकि उस एक्सरे में भी उसको पेशेंट को मिनिमम डोज जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मिले, उससे ज्यादा ना मिले, जिसमें कि हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए। या अगर एक चीज हम सीटी से कर रहे हैं या सीटी की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सरे से करना है, या अगर इस पेशेंट का सीटी करना है तो फिर आप एक्सरे ना करें, सिर्फ सीटी करें। तो these are the things that we need to keep in mind and analyze कि हमने क्या करना है। ठीक है ना, this is very important, this is really very important and मैं तो खुद इसकी बहुत ज्यादा हूँ, रेडिएशन प्रोटेक्शन और उसकी, कि जिस तरह से हम लोग एक्सरे कर रहे होते हैं, पेशेंट दाखिल होता है और हर एडमिटेड पेशेंट का एक्सरे टेस्ट हो रहा होता है, जिस तरह ब्लड सीपी यूरिन आ रही हो रहा है, इस तरह अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और चेस्ट एक्सरे भी सबका हो रहा है। तो आई थिंक इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। So if हाँ जी मैम, इसी वजह से मैं क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन वार्ड में तो स्पेशली बेस लाइन ही एक्सरे बना हुआ है, और कोविड में तो इतने धड़ाधड़ एक्सरेज हुए हैं कि बस, तो फिर इसी वजह से मैं पूछ रहा था। थैंक यू सो मच मैम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड आई आल्सो एग्री विद दिस कि इट शुड ओनली बी डन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, एंड रिपीटेड भी आप तब कराएं अगर जरूरत है, वरना नहीं। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? चलें जी, thank you, thanks a lot. It was a very good interactive discussion and I hope you benefit from it, और इंशाल्लाह all of you pass, इंशाल्लाह we'll pray कि आप लोग सब पास हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, best of luck। चला मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Allah bless you. जी, thank you।